સર્જન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીની કેપિટલ એન્ડ કમોડિટી માર્કેટ કમિટી દ્વારા આયોજિત આપનો પ્રોગ્રામ એડિંગ વન મોર ઝીરો ટુ યોર નેટવર્ક, ટુ યોર બિઝનેસ, ટુ યોર પ્રોફિટ, અને બી રાઇટ સાઈડ પર એડિંગ વન મોર ઝીરો. અને એના માટે આપણે જે ઇન્વાઇટ કર્યા છે આજના મુખ્ય અતિથિ, તો બધાનું સ્વાગત કરીએ. સૌથી પહેલાં તો ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રેસિડેન્ટ શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસી, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી અશોકભાઈ જીરાવાલા, अपना ट्रेजरर श्री मितेशभाई मोदी, कैपिटल मार्केट हमारा ग्रुप चेयरमैन श्री कमलेशभाई, कैपिटल मार्केट कमिटीના ચેરમેન અયુબભાઈ આક્યુબલી અને ઉદયભાઈ, આ બધા આપ સૌને સત્કારવા ખૂબ આતુર છે. પ્લસ આજના સ્પીકર એ ખરેખર તમને એની પોતાની એકદમ ડિફરન્શિએટેડ, આજ સુધી નહીં સાંભળેલી વાતોથી તમને તરબોળ કરવા ખૂબ ઉત્સાહિત છે. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની કેપિટલ માર્કેટ કમિટી બહુ બધા નવા સરસ પ્રોગ્રામ લાવતી રહી છે. ઇન્વેસ્ટરો અને ઇન્ટરમીડિયરી કે જે સ્ટોક માર્કેટના બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલા છે, એ લોકોને ઉપયોગી સતત નવા પ્રોગ્રામ અમે કરતા જ રહીએ છીએ. પણ આ પ્રોગ્રામ કરવા માટે જે અમને પ્રેરણાબળ જોઈએ, જે સપોર્ટ જોઈએ, જે માર્ગદર્શન જોઈએ, એ જો નહીં હોય ને તો આટલા સરસ પ્રોગ્રામ થાય નહીં. તો લકીલી આ વખતે પણ અમને જેને કહેવાય ને ડબલ એન્જિનવાળી સરકાર મળી છે. એક નિખિલભાઈ ખૂબ જ ઉત્સાહી પ્રેસિડેન્ટ અને અમારા ગ્રુપ ચેરમેન એટલા જ ઉત્સાહી, અમને સતત કંઈ ને કંઈ નવું, કંઈ મોટું કરવાનું માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા આપતા જ રહે છે. પ્રોગ્રામમાં આગળ વધીએ તે પહેલાં હું શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસીને વિનંતી કરીશ કે આપ સૌનું સ્વાગત કરે. નિખિલભાઈ. ગુડ ઇવનિંગ. ધ સધન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી તરફથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરતા મને અત્યંત આનંદ થાય છે. જર્ની ટુ ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ એટલે કે આર્થિક સ્વતંત્રતાને કઈ રીતે વધુ સદ્ધરતાથી બક્ષી શકાય અને આપણે આપણા જીવનને કઈ રીતે વધારે બળવત્તર બનાવી શકાય તેવા હેતુથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે. અને આપણી સાથે જે વક્તા ઉપસ્થિત છે તે પોતે પોતાનામાં એક બહુ મોટી તાકાત છે, ડૉક્ટર ધનંજય બાંઠિયા. અને એમનું નામ, એમને તમે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સને પૂછો તો એમની વિશિષ્ટતા, યુટ્યુબ પર તમે જુઓ તો એમની વાતો, આ બધું જ એટલું બધું ઇમ્પ્રેસિવ છે કે આપણને એમ થાય કે ચોક્કસ એમને સાંભળવા ગમશે. એવા હેતુથી આપણે આજે એમને નિમંત્રણ આપ્યું, આમંત્રણનો સ્વીકાર કર્યો. જોરદાર તાળીઓથી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ. ધનંજયજી ગુજરાતીમાં સમજશો તો સમજો છો તો ધનંજયભાઈ, ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ 1940માં સ્થપાયેલી અમારી આ સંસ્થા, 4 વ્યક્તિઓએ શરૂ કરેલી આ સંસ્થા આજે 13,500 સભ્યો ધરાવે છે અને 150થી વધુ એસોસિએશનોનું પીઠબળ ધરાવે છે. ઉમરગામથી ભરૂચ સુધીનો આપણો આ વ્યાપ છે. તમે જે હોલમાં બેઠા છો તે આખી વાત જો પ્રસ્તુત કરું તો અમારી આખી પ્રિમાઇસીસ 1,10,000 સ્ક્વેર મીટર જગ્યા આપણી પાસે છે. એ પોતે પોતાનામાં એક બહુ મોટી ઘટના છે અને આખા દેશની સૌથી રિચેસ્ટ ચેમ્બર કહી શકાય એવી ચેમ્બરમાં આપ પધાર્યા છો. આ પ્રિમાઇસીસની અંદર 1,16,000 સ્ક્વેર ફીટનો પિલરલેસ એર કન્ડિશન ડોમ છે. એ 10,000 લોકોની ક્ષમતા ધરાવે છે અને નવરાત્રિ માટે સુરતનું સૌથી ફેવરિટ સ્થળ છે તેમ કહું તો પણ ખોટું નથી. એની બાજુમાં આ પ્લેટિનમ હોલ જેની 1200ની કેપેસિટી છે, લંચ ડિનર એરિયા, લોન અને ત્યારબાદ 7 માળનું બિલ્ડિંગ જેમાં 2 ફ્લોર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના છે. સમૃદ્ધિ નાનપુરા એટલે જૂના સુરતની અંદર અમારી સંસ્કૃતિની ધરોહર સમી સમૃદ્ધિ નાનપુરા બિલ્ડિંગ છે, જ્યાં અમે SGCCI એજ્યુકેશન સ્કિલ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટર ચલાવીએ છીએ. આ કંઈ ચેમ્બરની કેટલીક વાતો. ચેમ્બરની પ્રવૃત્તિની વાત કરું તો આ પ્રકારના 300થી વિશેષ કાર્યક્રમો કરીએ છીએ અને તેની પાછળનું એકમાત્ર પ્રયોજન દક્ષિણ ગુજરાતનો કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈ પણ ધંધા ઉદ્યોગનો પ્રતિનિધિ કોઈ પણ પ્રકારના જ્ઞાનથી વંચિત નહીં રહી જાય તે અમે જોઈએ છીએ. અને એટલે આ સેમિનાર, વર્કશોપ, કોન્ક્લેવ, એવોર્ડ ફંક્શન્સ આ બધું અમે કરતા હોઈએ છીએ. અમારું બીજું કામ એક્ઝિબિશન્સની અંદર અમારી માસ્ટરી છે. તમે બહાર નીકળશો તો ડાબી બાજુ જે એક્ઝિબિશન સેન્ટર છે તેમાં 1 વર્ષની અંદર 15થી પણ વધુ એક્ઝિબિશન અને તે દરેક એક્ઝિબિશનની 2 કરોડથી વધુની લાગત એ અમારું મુખ્ય કાર્ય છે.
ઉત્પાદકતાને સીધું માર્કેટ કઈ રીતે પૂરું પાડી શકાય એ અમે બહુ સારી રીતે જાણીએ છીએ. ઓછામાં ઓછા 5 એક્ઝિબિશન ટેક્સટાઇલના, અને એ ઉપરાંત સમગ્ર ભારતનો વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયાનો સૌથી મોટો ઓટો શો, ઓટો એક્સપો માર્ચ મહિનામાં અમે કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. અને આજે એક નવી જાહેરાત હું મારા વક્તવ્યના અંતે કરવાનો છું, તે આપ લોકોને માટે છે, એટલે હું એ જાહેરાત હમણાં નથી કરતો. આ ઉપરાંત હેલ્થ એક્સપો, એજ્યુકેશન એક્સપો, સ્ટાર્ટઅપ એક્સપો, આમ વિવિધ પ્રકારના એક્ઝિબિશન્સની અંદર અમારી માસ્ટરી છે. આવું 22મી તારીખથી 3 દિવસનો જે એક્ઝિબિશન થવાનું છે, આખા વર્લ્ડની ધ બેસ્ટ મશીનરી, ટેકનોલોજીવાળી મશીનરીનું પ્રદર્શન અમારા એક્ઝિબિશન સેન્ટરમાં થવાનું છે. આ અમારું બીજું કાર્ય. અમારું ત્રીજું કાર્ય, અને તે સમાજ પ્રત્યેની જવાબદારી. જ્યારે જ્યારે પણ કુદરતી આફતો આવે ત્યારે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ પ્રજાજનોની સેવામાં હાજર હોય છે. ચોથું કાર્ય, સરકારની સામે પ્રતિનિધિત્વ. ગુજરાત સરકાર અમને સાંભળે છે, કેન્દ્ર સરકાર સાંભળે છે, લોકલ સ્થાનિક સરકારો પણ અમને સાંભળે છે, અને તેથી ધંધા અને ઉદ્યોગનો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય, ઇન્ડિવિજ્યુઅલનો પ્રશ્ન હોય કે સંસ્થાકીય પ્રશ્ન હોય, અમે રજૂ કરીએ છીએ, અને એમાં અમે પાછળ ફોલોઅપ દ્વારા લાગી પડતા હોઈએ છીએ, અને જ્યાં સુધી એ સમસ્યાનું સમાધાન નહીં થાય ત્યાં સુધી અમે તેની પર કામ કરતા હોઈએ છીએ. અને અમારું 5મું કાર્ય એ છેલ્લા 3 વર્ષથી ખૂબ જોર પકડ્યું છે, તે ઇન્ટરનેશનલિઝમ. 85 દેશો સાથે અમારી કનેક્ટિવિટી છે. મિત્રો, તમને બધાને પણ યાદ અપાવી દઉં, 15, 16 અને 17મી સદીની અંદર 84 દેશના હોતા આપણા 84 બંદર, એટલે કે ચોક બજારની અંદર જ્યાં અત્યારે કિલ્લો જૂનો દેખાય છે ત્યાં ચાલતો હતો. વિચાર કરો કે 15, 16ની 17મી સદીની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના કોમ્યુનિકેશનના સાધનો અને સિસ્ટમ વગર એ વખતે અમે ધંધો કરતા હતા. એ ધંધો રિવાઇવ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, અને અમારા ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ રમેશભાઈ વઘાસિયાના પ્રયત્નોથી અમે મિશન 84 શરૂ કર્યું હતું. હવે મિશન 86 ચાલી રહ્યું છે, અને હું એ 86મા વર્ષનો 79મો ચેમ્બરનો પ્રમુખ છું. હમણાં જ આ વર્ષે જે 2 મહત્વની ઘટના બની એ બી આપને જણાવી દઉં. ઝિમ્બાબ્વેના ઉપરાષ્ટ્રપતિ પહેલી વખત સુરતમાં ખાસ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના આમંત્રણને માન આપીને પધારીને એમના દેશની અંદર સુરતને માટે શું ઓપોર્ચ્યુનિટી છે તે તક અમને સાંપડી હતી. અને હમણાં 3 દિવસ પહેલા હું 18 સભ્યોનું પ્રતિનિધિ મંડળ લઈને બોત્સવાના, સાઉથ આફ્રિકાની મુલાકાતે ગયો હતો. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુજીની સાથે, અને ત્યાંના રાષ્ટ્રપતિની સાથેની અમારી 1 કલાક ને 10 મિનિટની મુલાકાતની અંદર સુરતીઓ માટે જબરદસ્ત તક અમે ઊભી કરીને આવ્યા છે, એમ કહું તો ખોટું નથી. તો આ છે અમારી ચેમ્બરની પ્રવૃત્તિ. સુરતની જો વાત કરું તો મને મારી જાત ઉપર અને સુરતી તરીકેનો બહુ ગર્વ અને અભિમાન છે. સાહેબ, 1994 કદાચ તમને તો યાદ ન હોય, પણ અહીં બેઠેલા ઘણા બધા સુરતીઓને યાદ હશે. કહેવાતા પ્લેગ વખતે ધ ડર્ટીએસ્ટ સિટી ઓફ ધ વર્લ્ડ. મિત્રો, તાળી પાડવાનો સમય છે 2025માં, ધ ક્લીનેસ્ટ સિટી ઓફ ઇન્ડિયા. આ સુરતીઓએ કરેલું જબરદસ્ત કામ છે. Ours is a city of flyover bridges. પર્સન્ટેજની દ્રષ્ટિએ સૌથી વધારે ફ્લાયઓવર બ્રિજીસ ગુજરાતની અંદર, સુરતની અંદર છે. 100% ડ્રેનેજ. કોઈ એક પણ જગ્યા પર તમને ઓપન ડ્રેનેજ નહીં દેખાય. 100% સિમેન્ટ કોન્ક્રીટના રસ્તાઓ, અનઇન્ટરપ્ટેડ પાવર સપ્લાય 24 કલાક. આ બહુ મોટી ઉપલબ્ધિ 85 લાખના શહેરની અંદર હોઈ શકે એવું માત્ર સુરતમાં બની શકે. 26 રાજ્યોના પ્રતિનિધિઓ સુરતમાં રહે છે. ઇટ ઇઝ અ મિની ઇન્ડિયા. અને એટલે અમે એને મોસ્ટ લવેબલ અને લિવેબલ સિટી કહીએ છીએ. સુરતને 8 એવોર્ડ છેલ્લા વર્ષમાં મળ્યા છે. એટલે કહી શકાય કે કદાચ આખા ભારતની અંદર જે સૌથી સર્વોત્તમ સિટી છે તેની અંદરનું એક સિટી છે. એ સિટીની અંદર આપ પધાર્યા છો, એટલે એક સુરતી તરીકે અમને સૌને તમને આવકારતા ખૂબ ખૂબ આનંદ અને ગર્વ થાય છે. મિત્રો, વિષયની વાત મારે કરવાની નથી, કારણ કે વિષયના તજજ્ઞ આપણી સાથે ઉપસ્થિત હોય, પરંતુ 1 more 0 આ બધાની જ નેમ ઇન્ડિયા વ્યક્તિગત રીતે પણ હોઈ શકે, પણ ચેમ્બર તરીકે આપણી પણ એક નેમ છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીનો એક માણસ વધુને વધુ પૈસા કમાય. અને સુરતની, ભારતની જીડીપીની અંદર સુરતીઓનો સૌથી મોટો ફાળો હોય. ડાયમંડ કટિંગના ક્ષેત્રની અંદર 10માંથી 9 હીરા સુરતમાં બને છે. ટેક્સટાઇલની અંદર 15 લાખ લોકો નિર્ભર થાય છે. ધનંજયભાઈ કહેતા ગર્વ થાય છે કે સુરતની સાડી વારાણસી જાય, અને વારાણસીની અંદર અમારી જ બહેનો, અમારી જ પત્નીઓ ત્યાંથી ખરીદી કરે, અને સુરત આવીને અમને ગર્વથી બતાવે કે હું આ વારાણસીની સાડી લઈને આવું છું. ખોલે ત્યારે ખબર પડે કે આ તો સુરતની સાડી છે. તો ધીરે ધીરે સુરત. એટલે અમે ઈચ્છીએ કે અમારા બધા જ મિત્રો એટલું બધું કમાય, અને એ બધું જ કમાઈને પાછું સમાજને પરત આપે એવી ભાવનાથી કમાય. તો હું માનું છું કે આજનો દિવસ લેખે ગણાશે. આપ સૌનું વધુ એક વખત અને વક્તાશ્રીનું સ્વાગત કરી કમિટીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, કારણ કે આ કમિટી એક બહુ વાઇબ્રન્ટ કમિટી છે.
અલગ અલગ પ્રોગ્રામોની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. મારા વર્ષના 5.5 મહિના સમાપ્ત થઈ ગયા છે, પણ આવનારા 6.5 મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન આ કમિટી દ્વારા કાર્યક્રમોનો રેકોર્ડ સ્થાપિત થશે એવી મને ચોક્કસ શ્રદ્ધા છે. એટલે ગ્રુપ ચેરમેન તરીકે કમલેશભાઈ અને અયુબજી, તમારી એ જવાબદારી છે, બાકીના મિત્રોની પણ એ સંયુક્ત જવાબદારી છે કે આપણે એવા કાર્યક્રમો આપીએ કે જેથી સંસ્થા તરીકે આપણને આપણામાં પોતાનામાં ગૌરવ થાય. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ નિખિલભાઈ. નિખિલભાઈ જ્યારે વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ હતા ને ત્યારે એમની લીડરશિપમાં એટલા બધા પ્રોગ્રામ કર્યા હતા. મને આજે અંદરથી ડર હતો કે આજે બી મારાથી ટેવ પ્રમાણે વાઇસ પ્રેસિડેન્સી નિખિલભાઈ નહીં બોલી જવાય, પણ વર્ડને થોડો ટ્વીક કરું. વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ વાઇસ નહીં, એટલા માટે કે ચેમ્બરની ખાલી 3 મિનિટમાં ચેમ્બરની આટલી ડિટેલમાં રૂપરેખા, ચેમ્બર શું કરી શકે છે, ચેમ્બર ક્યાં જઈ રહી છે, નેશનલ લેવલ પર ને ઇન્ટરનેશનલ પર આટલા ટૂંક સમયમાં જો કોઈ રૂપરેખા આપી શકે તો આપણા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ નિખિલભાઈ જ હોઈ શકે. થેન્ક યુ નિખિલભાઈ. ચેમ્બરની એક પરંપરા રહી છે કે આપણા જે બી ચીફ ગેસ્ટ હોય તેમનો આપણે આપણી શૈલીમાં એમનો આપણે સત્કાર કરતા હોઈએ છીએ. તો હું મંચસ્થ બધા મહાનુભાવોને વિનંતી કરું કે આપના મુખ્ય સ્પીકર શ્રી ધનંજયભાઈ ભાટિયાનું સ્વાગત કરે. નિખિલભાઈ નિખિલભાઈ ગ્રુપ ફોટો. સો ફ્રેન્ડ્સ, મેં તમને જે કહેવું હતું તે પ્રમાણે નવી જાહેરાત લઈને હું આવી દઉં છું. લેટ્સ હેવ અ So launching of Wealth Expo 2026 8-9-10 મે 2024 ના રોજ આ કમિટીના ઉપક્રમે આ એક્સપોનું આયોજન થનાર છે અને સરસાણાના જે સુરત ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન એન્ડ કન્વેન્શન સેન્ટર હોલની અંદર આ એક્સપો થવાનો છે. તમારે માત્ર તમારી જે તાકાત છે લગાવવાની છે કે જેટલા બી મિત્રોને તમે બોમ્બેમાં ઓળખો છો, અમદાવાદમાં ઓળખો છો, અલગ અલગ શહેરોમાં ઓળખો છો, એ બધાનો સંપર્ક કરીને એક કંપની પોતાનો સ્ટોલ અહીં લગાવે અને પોતાની પ્રોડક્ટ લોકો સુધી પહોંચાડે એવો આપની પાસેથી અપેક્ષા છે. આ બધી ચોપડી અહીંયાથી હાથમાંથી નીચે લઈને જે પહેલી રોમાં બેઠા છે એ બધાને આપો ઝડપથી. તમે બધા જે પહેલી રોમાં છો ઊભા થઈ જાઓ અને આમ ફરીને રાહુલ તું દૂર થઈ જશે, એ લોકો ફરી જશે. મિત્રો ફરી જાઓ બધા. મેડમ તમે પણ આમ આવી જાઓ. હલો
હા એમ. Going to be exciting one. જોરદાર તાળીਆਂ. Thank you for that. થેન્ક યુ સો મચ એક્સાઇટેડ. નિખિલભાઈએ જેટલા લોકોને બુક આપી છે ને બધાને 10-10 સ્ટોલ લાવવાની જવાબદારી બી આપી દીધી છે. એટલે માટે સરસ સરસ. પણ કાર્યક્રમમાં આગળ વધીએ તેની સાથે આજના પ્રોગ્રામની માહિતી તો મળવી જ જોઈએ ને. પણ ઘણીવાર એવું છે ને કે અમારે ત્યાં ટ્રેલર એટલું એક્સાઇટિંગ હોય છે કે પિક્ચર જોવાની મજા જ આવે. તો હંમેશા જે ખૂબ જ એક્સાઇટિંગ રીતે ટ્રેલર રજૂ કરી રહ્યા છે એવા અમારા ગ્રુપ ચેરમેન શ્રી કમલેશભાઈ ગજરાને ખાસ વિનંતી કે એમની આગવી શૈલીમાં પ્રોગ્રામ માટેની કંઈક રૂપરેખા આપે. નમસ્કાર. ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી અને કેપિટલ એન્ડ કોમોડિટી માર્કેટ દ્વારા આયોજિત આજના આ જર્ની ટુ ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમની સિરીઝના પહેલા અધ્યાયમાં આપ સર્વેનું જોરદાર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજના આ સેમિનારને સફળ બનાવવા માટે ચેમ્બરની કેપિટલ એન્ડ કોમોડિટી માર્કેટ કમિટીના દરેક સભ્યોને પોતાના સ્થાન ઉપર ઊભા થવા માટે વિનંતી કરું છું. મિત્રો, આ એ લોકો છે કે જેઓએ આ સેમિનારને સફળ બનાવવા માટે ખૂબ મહેનત કરી છે. જોરદાર તાળીઓથી આ લોકોને પહેલા હાર્દિક સ્વાગત. આજનો વિષય છે એડ વન મોર ઝીરો. આપણા આજના વક્તા ધનંજયભાઈ આપણા ફાઇનાન્શિયલ જીવનમાં વન મોર ઝીરો એડ કેમ થાય તેની તો ખૂબ સરસ વાતો કરશે. પણ આપ સૌ અહીં આવ્યા છો ત્યારે ચેમ્બરના માધ્યમથી આપના જીવનમાં 3 ઝીરો દ્વારા આપનું જીવન કેમ બદલાય 3 વાતો હું આપને રજૂ કરીશ. પહેલું છે 1 ઝીરો એડ કરો તમારી સ્કિલમાં. કંઈક નવું શીખો. દર મહિને એટલું બધું કંઈક શીખો. ચાહે કોમ્યુનિકેશન શીખો, માર્કેટિંગ શીખો, ડિજિટલ માર્કેટિંગ શીખો, XYZ શીખો અને તમારી સ્કિલને એટલી બધી હદે આગળ લઈ જાઓ કે એ એક એડ કરેલો ઝીરો તમારા ફાઇનાન્શિયલ જર્નીને ખૂબ આગળ લઈ જાય. અને એના જ ભાગરૂપે ચેમ્બર દ્વારા નાનપુરા મુકામે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ સેન્ટરમાં અલગ અલગ વિષયો ઉપર શોર્ટ ટર્મ કોર્સિસનું આયોજન થતું હોય છે, જેમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને સ્ટોક માર્કેટના કોર્સ છે. આપ સર્વેનું હું એનો ભાગ બનવા માટે હાર્દિક આમંત્રણ આપું છું. બીજો એડ કરો તમારા નેટવર્કમાં 1 ઝીરો. તમારું નેટવર્ક ડિસાઈડ કરે છે કે તમારી નેટવર્થ કેટલી હશે. સાહેબ, યોર નેટવર્ક ડિસાઈડ યોર નેટવર્ક, રાઈટ? તો અહીંયા જે કંઈ પણ સેમિનારમાં આપ આવો છો એ સેમિનારમાં લોકોને મળો, તમારું નેટવર્ક વધારો. 13,000 થી વધુ લોકોની સંસ્થામાં આપ સર્વેને હું ચેમ્બરના મેમ્બર બનવા માટે ચેમ્બર પરિવાર તરફથી હાર્દિક આમંત્રણ પાઠવું છું. એક ઓર ઝીરો એડ કરો તમારા માઇન્ડસેટમાં. કારણ કે કહેવાય છે કે ઇમ્પોસિબલ ને પોસિબલ કરાવવા માટેની ક્ષમતા માત્ર એક જ વસ્તુમાં છે અને એ છે તમારું માઇન્ડસેટ. તમારા માઇન્ડસેટને બદલવા માટે સમયાંતરે ચેમ્બર દ્વારા વિવિધ વિષયો ઉપર વક્તાઓને બોલાવીને સેમિનારોનું અલગ અલગ આયોજન થતું હોય છે. આના જ ભાગરૂપે આજે આપણે ધનંજયભાઈને અહીં બોલાવ્યા છે. 3500 થી વધુ સેમિનાર ધનંજયભાઈ લઈ ચૂક્યા છે. 5 લાખ લોકોના જીવનમાં તેઓ સકારાત્મક બદલાવ લાવી ચૂક્યા છે. થોડી ઓછી તાળી પડી. મને એમ લાગે છે કે ધનંજય માટે હજી વધુ તાળીઓ પડવી જોઈએ. આ જર્ની સતત ચાલુ રહેશે અને આ જર્ની ચાલુ રહેવાના ભાગરૂપે આવનારી 22 તારીખે અમે સીએ બિપિનભાઈ હિરપરા, બિપિનભાઈ ઉભા થશો આપની જગ્યા પર. સીએ બિપિનભાઈ દ્વારા નાનપુરા મુકામે એક સેમિનારનું આયોજન કરેલ છે. બાલકૃષ્ણભાઈ ઉપસ્થિત છે. બાલકૃષ્ણભાઈના નેતૃત્વમાં આવનારી 6 તારીખે કાર્તિકભાઈ મહેતા ઇન્ડિયન મેગા વેલ્થ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર એક સેમિનારનું આયોજન કરેલું છે. આવનારી તારીખ 12/12/2025 ના રોજ ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ 2.0 વિશાલભાઈ બક્ષી ઉપસ્થિત છે. વિશાલભાઈ આપની જગ્યા પર ઊભા થશો. વિશાલભાઈના નેતૃત્વમાં હિતેશભાઈ માળી, સ્ક્રીન પર આપ જોઈ શકો છો, હિતેશભાઈ માળી ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ 2.0 આપની સમક્ષ લઈને કેપિટલ એન્ડ કોમોડિટી માર્કેટ કમિટી આવશે અને વર્ષના અંતમાં મે
8, 9 અને 10 વેલ્થ એક્સપો નિખિલભાઈ હમણાં જ જાહેરાત કરી આ મેગા ઇવેન્ટ થનાર છે. આપ સર્વેને સતત ચાલનારી આ પ્રવૃત્તિમાં ચેમ્બર પરિવાર તરફથી ખૂબ ખૂબ હાર્દિક આમંત્રણ પાઠવું છું, શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને આજની આ ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમની જર્નીને ધનંજયભાઈ આગળ વધારે એવી શુભકામનાઓ પાઠવું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ કમલેશભાઈ. હવે એટલે આપણામાં જે કોઈકને થોડી આડસડી ઊંઘ આવી હોય તે તો પહેલાં ઉડી જાય, એટલે પછી આપણે શ્રોતા તરીકે સ્પીકરને સારી રીતે માણી શકીએ, સમજી શકીએ. થેન્ક યુ. હવે આજના સ્પીકરનું ઇન્ટ્રોડક્શન માટે હું શ્રી ઉદયભાઈને રિક્વેસ્ટ કરીશ. ઉદયભાઈ પ્લીઝ. નમસ્કાર. સૌપ્રથમ આજની આ ઇવેન્ટ માટે હું આભાર વ્યક્ત કરું છું ઉપસ્થિત શ્રી પ્રમુખ શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસી સાહેબનો, કેપિટલ કમિટી ગ્રુપ ચેરમેન શ્રી કમલેશભાઈ ગજેરાનો તથા SCCCIના સર્વે પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિનિધિઓનો. માનનીય ઉપસ્થિત મહાનુભાવો અને પ્રિય શ્રોતાગણ, આપણે આપણા કાર્યક્રમને સુશોભિત કરવા માટે એક પ્રતિષ્ઠિત અને પ્રેરણાદાયી વ્યક્તિત્વ આપણા વચ્ચે હાજર છે, ડૉક્ટર ધનંજય બાંટિયા સાહેબ. ડૉક્ટર બાંટિયા સાહેબ સ્માર્ટ એક્યુમેન્ટ કન્સલ્ટન્સીના સ્થાપક છે અને વ્યાવસાયિક સલાહકાર, કીનોટ સ્પીકર અને અનુભવી ટ્રેનર તરીકે દેશભરમાં જાણીતા છે. તેઓ સર્ટિફાઈડ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનર છે. ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ અને લર્નિંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ક્ષેત્રમાં 19-20 વર્ષથી વધારે અનુભવ ધરાવે છે. ભારતના 24 રાજ્યોમાં 3500 કરતાં વધારે સેમિનાર ઓલરેડી કરી ચૂક્યા છે અને કમલેશભાઈએ કહ્યું એ પ્રમાણે 5 લાખથી વધુ લોકોને માર્ગદર્શન આપી ચૂક્યા છે. ડૉક્ટર બાંટિયા સાહેબનું વક્તવ્ય કરવાની શૈલી સરળ, સ્પષ્ટ અને પ્રેરણાદાયી છે. તેમની હૃદય સુધી પહોંચતી વાતો લોકોને નવી દ્રષ્ટિ, નવી આશા અને જીવનમાં ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ કરવામાં મદદરૂપ કરે છે. મિત્રો, આજના આ કાર્યક્રમ થકી તેમના વિચારો, અનુભવ અને માર્ગદર્શન એક અનોખી દિશા આપશે, તેમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. ચાલો આપણે જોરદાર તાળીઓથી ડૉક્ટર ધનંજય બાંટિયા સાહેબને મંચ પર આવકારીએ. हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार सर. इस एनर्जी से काम नहीं चलेगा. वन मोर राउंड. हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार. सर, ये गुजरात वाली एनर्जी है. सॉरी, मुझे गुजराती में बात करना नहीं आता है. हिंदी चाल से राइट. थैंक यू सो मच सर. बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मेरा 2 छोटा सा रिक्वेस्ट है. पहले तो अपने जिगर के टुकड़े को साइलेंट मोड में कर दीजिए. अभी सर मोबाइल मेरा जिगर का टुकड़ा हो गया है, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप इट ऑन साइलेंट मोड. क्योंकि सर आज के डेट में 10 मिनट हाथ नहीं लगाते ना, ऐसा लगता है बॉडी का पार्ट मिसिंग है. ये सर नो. और सर जिसको 1 घंटे मैसेज नहीं आता है, वो अपना नेट चेक करता है कि मेरा नेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. दैट्स द एडिक्शन वी गॉट इनटू. और दूसरा सर, ये जो भी मैं शेयर करूंगा, ये मेरा सोचने का तरीका है. दिस इज हाउ आई लुक एट थिंग्स. हो सकता है कि आपका सोचने का तरीका और मेरे तरीके में कुछ फर्क हो. आई एम एब्सोल्युटली ओके. सर, हम यहाँ पर डिबेट नहीं करेंगे वेदर यू आर राइट और आई एम राइट. अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है, एक्सेप्ट कीजिएगा, और समझ में नहीं आता उसको आप इग्नोर कर सकते हैं. विल नॉट डिबेट हियर वेदर यू आर राइट और आई एम राइट. इफ यू लाइक माय अप्रोच, प्लीज एक्सेप्ट इट. इफ यू डोंट लाइक, प्लीज इग्नोर इट. वो कहते हैं ना, जियो और जाने दो. दैट इज द न्यू फॉर्मूला. जियो और जाने दो. नहीं समझ में आया तो पंगा लेने का जरूरत नहीं है. तो सर, एक बार क्या होता है ना, एक अमीर आदमी के पास खूब सारा पैसा रहता है. वो बाबा जी के पास जाता है, बाबा जी को कहता है, बाबा जी मेरे पास पैसा तो है लेकिन मन में शांति नहीं है. अब उपाय बताओ, शांति कैसे मिलेगा? चाहो तो आप पैसा भी ले लो, मुझे पैसा नहीं चाहिए. क्या चाहिए? शांति चाहिए. अब बाबा कहते, देख मैं भी खुद एक बाबा हूं, मुझे भी पैसे का जरूरत नहीं है. जस्ट बिकॉज यू हैव कम टू मी, आई विल गिव यू अ सॉल्यूशन. तू सुबह उठ, पूजा पाठ कर, योगा कर, मेडिटेशन कर, इससे आपको शांति मिलेगा. सर, वो वही करता है, सुबह उठता है, पूजा पाठ करता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है. इट डज इट फॉर 15 डेज. 15 दिन करता है. 15 दिन करने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आता है. अब हमारा इंडिया में क्या कल्चर है, अगर एक डॉक्टर से इलाज पूरा नहीं तो हम क्या करते हैं? दूसरे के पास चले जाते हैं. सर, वो चला जाता है दूसरे बाबा के पास. वो बाबा कहते हैं स्टार्ट डूइंग चैरिटी. अब चैरिटी करो, गाय को रोटी खिलाओ, कबूतर को दाना दो, दान दक्षिणा करो, इससे आपको शांति मिलेगा. वो भी करता है, फिर भी कुछ बदलाव नहीं है. तीसरे के पास जाता है, चौथे के पास जाता है, 5वें के पास जाता है. जब वो 5 बाबा के पास जाके थक जाता है, तो आखिरी वाले बाबा उसे कहते हैं, यू गो टू द माउंटेन. आप पहाड़ पे चले जाओ, वहां पर हमारे सबसे सीनियर बाबा बैठे हैं, वो आपको बताएंगे शांति कैसे मिलेगा.
सर वो वही करता है, अपना बैग लेता है, पहाड़ पे चला जाता है, सेम प्रॉब्लम की बाबा जी मेरे पास पैसा तो है लेकिन मन में शांति नहीं है, उपाय बताओ शांति कैसे मिलेगा, चाहो तो आप पैसा भी ले लो। बाबा का भी सेम रिप्लाई कि देख मैं बाबा हूं, मुझे पैसे का जरूरत नहीं है, लेकिन बाबा उसे कहते देख तू इतना ऊपर चढ़ के आया है, कल गिव यू अ सॉल्यूशन, मैं एक मंत्र पढ़ेगा, मंत्र सुनने के बाद तेरे को शांति मिलेगा। वो कहता है बाबा मंत्र आप पढ़ोगे और शांति मेरे को मिलेगा। बोले यस, मंत्र मैं पढ़ेगा और शांति तेरे को मिलेगा। तेरे को करना क्या है, आंख बंद करके हाथ जोड़ करके खड़ा होना है और जब मंत्र खत्म हो तब आंखें खोलनी है। सर वो वही करता है, अपना बैग नीचे रखता है, आंख बंद करता है, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और बाबा मन में मंत्र पढ़ते रहते हैं। 5 मिनट होता है, 10 मिनट होता है, 15 मिनट होता है, 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है। सर 2 घंटे तक बाबा कुछ बोलते नहीं है। जब 2 घंटे तो बाबा कुछ बोलते हैं, लगता है बाबा कुछ बोल क्यों नहीं रहे, तब वो अपनी आंखें खोलता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो क्या देखता है, ना ही बाबा है और ना ही बैग है। उससे लगता है बाबा मेरा बैग लेके फरार हो गए। अब सर मैं कोई बात बताओ, जिसका पैसा लुट जाए वो आदमी क्या करेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना, मेरा पैसा लुट गया, मेरा पैसा लुट गया, और वहां पर रोना चालू कर देता है। और मजे की बात यह कि जब इंसान रोता है तो उसे नींद अच्छी आती है। सर नो सर बचपन में मार खाने के बाद जो नींद आता था, आज तो मैं सुकून नहीं मिला है। लेकिन जब वो सो के उठता है तो क्या देखता है, जहां पर वो सो गया था उसी पेड़ के पीछे बैग पड़ा है। वो बैग को खोलता है, चेक करता है पैसा है कि नहीं है। पैसा तो उतना ही है जितना वो घर से लेके चला था। वो अपने बैग को गले से लगा के खुश हो जाता है, मेरा पैसा मिल गया, मेरा पैसा मिल गया। तभी बाबा ऊपर से नीचे आते उसे कहते हैं तेरे को अभी कैसा लग रहा है। वो कहता है बाबा बहुत शांति लग रही है। तब बाबा कहते हैं ये तो तेरे पास पहले से था, अभी तेरे को क्यों शांति लग रहा है। तब बाबा उसे बताते हैं जिंदगी में चाहे पैसा हो, रिलेशनशिप हो या टाइम हो, जब तक इंसान के पास रहता है उसकी वो कदर नहीं करता है, और जब उससे दूर चला जाता है उसकी इंपॉर्टेंस वो ज्यादा समझता है। यस और नो, वेदर इट इज टाइम, वेदर इट इज मनी, वेदर इट इज रिलेशनशिप, सर जब तक इंसान के पास रहेगा ना लोग उसकी कदर नहीं करते। सर कुछ लोग अपने पापा से 15-15 दिन बात नहीं करते हैं, और जब पापा चले जाते तो क्या बोलते हैं, पापा से अच्छे से बात नहीं हो पाई। मुझे लगता है अगर आपके पापा जिंदा हैं तो दिन में 5 मिनट बात कर लेना चाहिए। सर नो, ये जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा बेटा यूएस में छे, कनाडा में छे, जर्मनी में छे, डॉक्टर छे, इंजीनियर छे, सर इस दुनिया में कोई बिजी नहीं है। हर आदमी 3 घंटे सोशल मीडिया में टाइम बर्बाद करता है। ये सर नो, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी सर। इफ यू आर प्रायोरिटी विल गिव अ कॉल, अदरवाइज यू डोंट गेट अ कॉल। अभी सर मेरा एक फ्रेंड रहता है कैलिफोर्निया में, उसके पापा भुवनेश्वर में रहते हैं, तो उसने अपने पापा को ना 1.5 लाख को राडो को घड़ी गिफ्ट किया। तो उसके पापा रात को कॉल करके क्या बोलते हैं पता है, बोलते बेटा तूने घड़ी तो दे दिया है, कभी समय भी दे दो, कभी समय भी दे दो। एंड दिस इज व्हाट आई लर्न सर। मेरे 19 साल का अनुभव मैंने एक चीज सीखा है, जो आदमी पैसा, रिश्ता और समय को बैलेंस करे चैंपियन वही है। सिर्फ पैसे से भी काम नहीं होगा, सिर्फ रिश्ते से भी काम नहीं होगा, और सिर्फ समय से भी काम नहीं होगा। भैया आज के डेट में खाली जेब घर पे बैठेंगे तो झगड़ा ज्यादा होता है। ये सो नो, दैट्स आल्सो रियलिटी। व्हेन पीपल आस्क मी धनंजय व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल बैलेंस। कोई चीज गलत नहीं है सर, देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग। सर कोई भी स्पीकर इस प्लेटफॉर्म में आपको ये नहीं बताएगा कि ये गलत है ये सही है। सर आपको डिसाइड करना है आपके लिए गलत क्या है, आपके लिए क्या सही है। सर आयुष्मान खुराना की पिक्चर है ड्रीम गर्ल, देखा है आपने, देखा है सर आपने, राइट? अगर आपने देखा नहीं तो देखिएगा सर। आयुष्मान खुराना की पिक्चर है ड्रीम गर्ल, उसमें वो क्या कहता है पता है, उसमें वो कहता है इस दुनिया में सब गलत है, जो कम गलत है वही सही है। इस दुनिया में सब गलत है, जो कम गलत है वही सही है। तो यू डोंट हैव टू बी राइट, यू हैव टू बी लेस रॉन्ग। चाहे इन्वेस्टमेंट हो या जिंदगी हो, आपको सही नहीं होना है, आपको कम गलत होना है। जो आदमी कम गलत है वही सही है। यस सर, एंड दैट इज व्हाट वी डू सर। तो सर मेरा आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप जो भी मुझे आंसर देंगे ईमानदारी से देंगे, वादा करते हैं सर? आपसे भी नहीं वादा किया है। तो मेरा पहला सवाल, लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम की पैसा? टाइम ऑब्वियसली, यस और नो। और आज मुझे आप क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? टाइम, बरोबर है सर। अगर आपको चैम्बर ने बोला होता कि धनंजय भाई आ रहे हैं और एक सीट का 5,000 रुपए लगेगा, कितने जन आते हैं? कोई भी नहीं आता, फिर झूठ क्यों बोला था? सर देखो अभी आपने बोला ईमानदारी से आंसर दूंगा। सर आप सभी ने टाइम क्यों बोला, पैसा क्यों नहीं बोला पता? उसके पीछे कारण है। आपको डर लग रहा था, आपका बाजू वाला आपको लालची नहीं समझे। ये सुनो, आपने अपना इज्जत बचाने के लिए, हूँ तो सरस मानुस छे, हूँ पैसा पैसा होए नहीं, लेकिन दिमाग में पैसा चल रहा था।
सर आज के डेट में आप कोई सोशल गैदरिंग में जाते हैं, लोग आपको नहीं पूछते शू काम करे छे, पूछते हैं ना, बताइए क्यों पूछते हैं? सर आप जो कोई सोशल गैदरिंग में जाते हैं जहां पर आपको लोग नहीं जानते, सर आपको नहीं पूछते कि दादा शू काम करे छे, क्यों पूछते हैं? ताकि वो डिसाइड करे आपको इज्जत कितना देना है। ये सर वो जानना चाहते हैं कि ये लार्ज कैप है, मिड कैप है कि स्मॉल कैप है, और कुछ कुछ अनलिस्टेड भी होते हैं। ये सर एंड दैट इज व्हाट मनी इज ऑल अबाउट सर। प्लीज अंडरस्टैंड, मनी इज वन टॉपिक जहां पर भारत में ना लोगों को आजादी नहीं ओपनली बात करने का। जो आदमी भारत में ओपनली बात करता है ना पैसे को लेकर, आपको क्या लगता है पता? मनी माइंडेड है, पैसे के पीछे पागल है, पैसे के पीछे मरता है। बट द रियलिटी इज, प्लीज अंडरस्टैंड, आज के डेट में पैसा बीच में है, उसके आजू बाजू बाकी सब चल रहा है। आप मानो या ना मानो, मर्जी आपकी है, जियो और जाने दो, मर्जी आपका है सर। आई एम नॉट हियर टू डिबेट सर, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव, इस पे चिंतन कीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा। क्या करना है? चिंतन। लोग क्या करते हैं? चिंता। ये तन और ता में फर्क समझ जाएंगे तो काम इजी हो जाएगा। सर आज मेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन डिसाइड करता है? इट्स अ फाइनेंशियल लाइफ। पैसा होगा तो इंटरनेशनल स्कूल, नहीं होगा तो सरकारी स्कूल। यस और नो? और लोग क्या ज्ञान देंगे पता है? बच्चों को महंगा स्कूल में मत पढ़ाओ, बच्चा बिगड़ जाता है। सर जिसको बिगड़ना है वो सरकारी स्कूल में बिगड़ सकता है। यस, दैट्स अ क्राइटेरिया। सर याद रखिएगा, जहां पर पैसे की कमी होगी ना, वहां डायलॉगबाजी ज्यादा होगी। रिमेंबर दिस, जो आदमी ज्यादा डायलॉग मारता है ना, समझ लीजिएगा पैसे का प्रॉब्लम है। दैट्स अ रियलिटी सर। आप सर सूरत में कोई ऑटो वाले से मिलिए जो 60 साल का है, आपको क्या बोलेगा पता है? धनंजय भाई, भले ही हमने जिंदगी में पैसा नहीं कमाया पर इज्जत बहुत कमाया है। सर इसको बनिया 10 रुपए का धनिया उधार नहीं देता है। ये सर क्या करेंगे तेरी इज्जत का? तेरे को कौन बोला पैसा नहीं कमाने के लिए? सर डायलॉग नहीं चाहिए सर। वी वांट टू बी वेरी प्रैक्टिकल। सर आज आप सूरत में कौन से घर में रहते हैं, कौन डिसाइड करता है? इट्स अ फाइनेंशियल लाइफ। पैसा होगा तो वेसू, नहीं होगा तो रेलवे स्टेशन के पीछे। यस नो, दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग। सर आज आपने कौन से ब्रांड के कपड़ा पहना है, कौन डिसाइड करता है? इट्स अ फाइनेंशियल लाइफ। पैसा होगा तो रेमंड, नहीं होगा तो बस स्टैंड। सर इस बार आप गर्मी की छुट्टी में या दिवाली में जो 10 दिन बंद रहता है, आप छुट्टी में कहां गए थे, कौन डिसाइड किया था? इट्स अ फाइनेंशियल लाइफ। पैसा होगा तो सिंगापुर, नहीं होगा तो सोलापुर। यस और नो? सिंगापुर और सोलापुर में ज्यादा फर्क नहीं है। सर आप में से जॉब कितने जन करते हैं या करते थे? प्लीज रेज योर हैंड। करते हैं या करते थे? ऑलमोस्ट 50-70%। सर आपका 1 तारीख वाला माइंड और 25 तारीख वाला माइंड में गैप होता है। यस और नो? सर 1 तारीख को आप लोग सब पुष्पा बन के घूमते हैं और 25 तारीख को सब शिवल्ली बन जाते हैं। यस, 1 तारीख को तुम झुकता नहीं है, 25 को तेरे पास रुकता नहीं है। सर 1 तारीख एंड 25 तारीख वाला इज ऑल्सो गैप, बिकॉज इफ यू डोंट टॉक अबाउट दिस टॉपिक, डोंट क्रिएट वेल्थ। सर ये टॉपिक जो है ना, मनी, अगर आप इन्वेस्टर अच्छा बनना चाहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है पता है? मनी इज 98% फिलोसॉफी। ये टॉपिक का 98% फिलोसॉफी है, 1.99% साइकोलॉजी है एंड 0.01% फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स है। दिस सब्जेक्ट ऑफ मनी इज 98% फिलोसॉफी सर। लोग डिस्कस कर रहे हैं मार्केट। सर लोग सुनते, आपने एक ऐड सुना है ना, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्टेड टू नो सर, इट इज सब्जेक्टेड टू माइंडसेट रिस्क। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू मार्केट, इट इज सब्जेक्टेड टू माइंडसेट रिस्क। सर माइंडसेट लोचा है, मार्केट में रिटर्न कमा के दिया है, हर आदमी ने पैसा नहीं बनाया सर। प्रॉब्लम मार्केट नहीं, प्रॉब्लम माइंडसेट है सर। दैट इज वेयर वी नीड टू वर्क। वी डोंट कंट्रोल मार्केट सर, वी कंट्रोल माइंडसेट। सर मार्केट पे आपका मेरा कंट्रोल नहीं है। अरे मेरे को लोग सवाल पूछते हैं, धनंजय भाई मार्केट क्या लगता है? मैं बोला ट्रम्प मेरा काका है जो मैं आपको बताऊं मार्केट क्या लगता है। ये सर वो रात को क्या ट्वीट करेगा मेरे को क्या पता है? ये सर हाउ डू आई शेयर इन दिस फोरम की मार्केट क्या लगता है? सर आप मेरे को पूछो माइंडसेट क्या लगता है, कैन ट्रेन यू फॉर माइंडसेट सर। And if you are trained for mindset, market becomes irrelevant. Everything will be in pace, sir. Only thing is you understand what drives an investor. अगर ये काम हो गया तो लाइफ इजी हो जाएगा। आप सूरत में सर्वे कीजिए सर, 90% लोग सूरत में अगर परेशान दिखेंगे ना, उसका कारण पैसा होगा। You do a survey tomorrow कि सूरत में जो आदमी परेशान में है, टेंशन है, डिप्रेशन में है, 90% people will be because of money। आप चेक कीजिएगा सर, जो आदमी टेंशन, परेशान, पैसा कारण होगा 90%, और बाकी 10% परेशान है रिलेशनशिप और हेल्थ को लेके। सर आज के डेट में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होने का मेन कारण क्या है? पैसा। और जिसका हेल्थ खराब है ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा पा रहा है? पैसा। और हेल्थ खराब होने का मेन कारण क्या है पता है सर? स्ट्रेस। हेल्थ खराब होने का मेन कारण क्या है?
Stress. Yes or no? That's the reason. What I'm saying is, sir, get the topic money right, life will become important and life will become the way you want it to be. That's the magic we talk about. क्योंकि सर इंडिया में आज जो मैं पैसे के बारे में सोचूंगा ना, 7 दिन बाद ऐसा माहौल होगा, मेरा सोचने का तरीका बदल जाएगा. We are driven by environment. I'll give you a beautiful example. सर अभी कोविड में मेरे अंकल का डेथ हो गया. जब उनका डेथ हुआ सबने क्या बोला पता है? देखो 50 करोड़ का आदमी था, चला गया. सर मेरे को एक बात बताओ, 50 करोड़ का आदमी जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है ना. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज द सेकंड स्टेटमेंट. क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे. और आप सभी को पता है हम खाली हाथ आए हैं. जब मेरा सवाल है, जब खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है, फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? ये प्रवचन सुनाने को बैठा दिया गया है. इसके पीछे एक रीजन है. भैया आपका क्या नाम है? भरत. भरत भाई, अगर आपको सूरत से चेन्नई जाने का है या फिर दिल्ली जाने का, तो आप कैसे जाएंगे? यू टेक अ फ्लाइट और ट्रेन. भरत भाई कह रहे हैं कि धनंजय भाई, अगर मेरे को सूरत से दिल्ली या चेन्नई जाने का, आई टेक अ फ्लाइट और आई टेक अ ट्रेन. मेरा सवाल है भैया, दिल्ली पहुंचने के बाद फ्लाइट का टिकट का वैल्यू क्या होगा? 0. आफ्टर रीचिंग दिल्ली इट विल बिकम 0. तो इस बार आप सूरत एयरपोर्ट में जाएं और मैडम को बोले, मैडम दिल्ली पहुंचने के बाद तो फ्लाइट का टिकट का वैल्यू 0 हो जाएगा, आप मेरे को फ्री में लेके जाओ. लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे. क्या कहेंगे? सर लॉजिकली यू आर राइट दैट आफ्टर रीचिंग दिल्ली इट विल बिकम 0, बट टू ट्रैवल दिस जर्नी फ्रॉम सूरत टू दिल्ली यू हैव टू पे, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम B to D. B स्टैंड फॉर बर्थ, D स्टैंड फॉर डेथ. और ये B to D के इसमें एक लेटर आता है C, एंड C स्टैंड फॉर करेंसी. C स्टैंड फॉर करेंसी. दैट इज व्हाट मनी इज ऑल अबाउट. सर ये ट्रैवल करने के लिए पैसे का जरूरत पड़ेगा. और जितना डायलॉग इंडिया में पैसे को लेके ना, ब्रह्मांड में इतना डायलॉग कोई नहीं मारता है सर. धनंजय भाई पैसा तो हाथ का मैल है. सर जो बोलता है उसको बोलो मेरे बेसिन में धोके जाइए, एक बार चेक तो करे निकलता है कि नहीं निकलता है. सर हमारा लोचा चालू होता है सुबह 7 बजे. आप सुबह 7 बजे टीवी खोलते हैं, सबसे पहले कान में क्या जाता है? सबसे पहले सुबह 7 बजे कान में जाता है, पैसा सब मोह माया है, त्याग दो. और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो बंदा बोल रहा है, बोलने का 2 लाख रुपए लेता है. ये सब आपने सुबह 7 बजे बोला पैसा त्याग दो, 10 बजे बोलते हैं EMI दो, रेंट दो, फीस दो. पहले डिसाइड करो देना क्या है. सर इफ यू आर नॉट हैविंग क्लैरिटी यू विल गेट इन कंफ्यूजन जोन. सर मेरे जो गुरु है ना, उन्होंने मेरे को 2012 में क्लियर कर दिया, धनंजय पहले तो डिसाइड कर ले जिंदगी जीना कौन सा है. वेदर यू वांट टू लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ और यू वांट टू लिव अ सोशल लाइफ. दोनों अच्छा है सर, गलत कुछ भी नहीं है. भरत भाई अगर आपको लग रहा है कि दुनिया में सब बेकार है, मतलब ही है, आप दीक्षा ले लो. ये तरीका है, दिस इज वे ऑफ लाइफ. लेकिन अगर शादी हो गया, बच्चे हैं, मम्मी पापा, जिम्मेदारी है, और सोशल लाइफ है, और दोनों का फाउंडेशन अलग है. द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज डिटैचमेंट. द फाउंडेशन ऑफ सोशल लाइफ इज अटैचमेंट. अगर सोशल आदमी डिटैच हो जाएगा, दुखी रहेगा. तो फिर लोग मुझे बोलते हैं कि धनंजय भाई देन स्पिरिचुअलिटी का रोल क्या है? द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज इट शुड मेक यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड योर सोर्स ऑफ इनकम शुड बी फ्रॉम द राइट सोर्स. दैट्स द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी. सर आई कम फ्रॉम अ जैन मारवाड़ी फैमिली. मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो वहां पर एक बंदा खड़े होकर क्या बोलता है पता है? अरे धनंजय भाई मेरे घर पे जो कैश पड़ा है ना, उसका कैसे ठिकाने लगाना है? मैंने बोला देख भाई 2 चीज है, पहले तो डेड बॉडी का ठिकाना लगाते हैं, कैश का ठिकाना नहीं लगाते. ये सर नो, तो टेक्निकली वहां ग्रामेटिकल एरर है. और दूसरा तू बोल रहा है मैं जैन हूं, और जैनिज्म का पहला प्रिंसिपल होता है नैतिकता. और जो आदमी बेईमान है वो जैन हो ही नहीं सकता है. मैंने बोला यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बी अ जैन. ये सर मैंने तेरा डेजिग्नेशन में जैन है, तेरा कर्मों से तू जैन नहीं है. इफ यू टेक दैट इज द पॉइंट इज सर मनी विल नेवर बी अ प्रॉब्लम. सर मनी का सोर्स विल बी अ प्रॉब्लम. सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अर्निंग मनी एंड मेकिंग मनी. नोट इट डाउन. सर देयर आर 2 वर्ड्स. एक होता है अर्निंग मनी, एक होता है मेकिंग मनी. इफ एफर्ट and ethics involved, that is called earning money. Without effort and ethics, it is making money. Yes or no? People are trying to make money, people are not trying to earn money, sir. If making money is in your radar, you are in a wrong myth. You have to earn money. That is where the problem is. Mindset. मैं कहता हूँ सर ये entire subject of money management is connected to mindset sir. और जिस investor ने इस पे control कर लिया, they become rock star investor sir. मैंने जितने फोरम में बात किया सर, I talk about investor psychology sir. Investor psychology is one topic जो आपके अंदर चला गया ना सर, काम आसान हो जाएगा सर. डायलॉग. और सर ये जो पैसे को लेके हमारी जो भाव है ना, इसमें गलती आपका नहीं है. The perception about money that we have is not your problem sir. इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बॉलीवुड. सर बॉलीवुड ने आपको बचपन से ये दिखाया है कि हीरो हमेशा गरीब होता है और विलेन हमेशा
पैसे वाला होता, कोई भी पुरानी पिक्चर देख लीजिएगा सर, हीरो हमेशा गरीब होगा, विलेन हमेशा हीरो। कौन होगा पता है सर? जिसके पास डिग्री होगा, नौकरी नहीं होगा, जिसका बहन का शादी नहीं हो रहा होगा, माँ बिस्तर पे खास रही होगी, दवाई का बोतल गिर जाएगा और पिताजी बैसाखी में खड़ा होगा, ये सब ना। और विलियन कौन है पता? स्कॉर्पियो, व्हाइट कुर्ता, मोटा चेन, ये सब 2 नंबर, और तेरा पापा होंडा एक्टिवा 1 नंबर। हमने माइंड में डाल दिया सर, दैट वाज 1980 वाला इंडिया, ये 2025 वाला इंडिया। और 2025 वाले इंडिया में अगर आदमी पैसा नहीं कमा रहा है, उसका गलती वो खुद का है सर। पिछले 25 साल में सब कुछ बदल गया सर, मार्क माई वर्ड, इन द लास्ट 25 years एवरीथिंग हैज चेंज सर। टेक्नोलॉजी बदल गया है, कपड़े पहनने का तरीका बदल गया है, खान पान बदल गया है, सोच बदल गया है, रिश्ते बदल गए। यस और नो मैडम? इन द लास्ट 25 years एवरीथिंग हैज चेंज। यस है ना? टेक्नोलॉजी बदल गया है, सोच बदल गया है, कपड़े बदल गए हैं, खान पान बदल गया है। मैडम 1990 में बहू सास से डरती थी। मैंने कुछ नहीं बोला है, बस मैंने इतना ही बोला, बाकी आप लोग बोल रहे हैं। यस और नो? और सबसे मजे का बात क्या है पता है? जो 1990 में बहू था, आज वो सास है। वो उस समय डरता था, आज भी डरता है। यस और नो? वो बोलता है मैं बदला कब लूंगी, मेरे को बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा। दैट्स अ रियलिटी। दिस इज सर, अगर आपका बेटा है, उसका बेटा हो तो आप क्या बनेंगे? दादा, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्रैंडफादर। सर इस जमाने में आप ग्रैंडफादर नहीं बनेंगे, आप बनेंगे असिस्टेंट फादर। आपको दूध भी लाना है, सब्जी भी लाना है और घोड़ा भी बनना है। यस सर नो? एंड वेलकम टू न्यू इंडिया सर। वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन चेंज विद टाइम, पीपल आर नॉट चेंजिंग सर। ये चैम्बर कॉमर्स का है, प्लीज अंडरस्टैंड, बिजनेस इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। पीपल आर टॉक अबाउट टेक्सटाइल का प्रॉब्लम है, डायमंड का सर प्रॉब्लम हर बिजनेस में रहेगा। इफ यू डोंट एड्रेस दैट प्रॉब्लम सर, पीपल आर टॉकिंग मोर ऑफ प्रॉब्लम, लेस ऑफ सॉल्यूशन। सर आज से 20 साल पहले आप कपड़े सिलवाते थे कि रेडीमेड खरीदते थे? सिलवाते थे। आज मैक्सिमम क्या कर रहे हैं? रेडीमेड। सर टेलर का बिजनेस किसने खा लिया? रेडीमेड ने। यस और नो? और आज से 20 साल पहले आप कॉल कहां करते थे? एसटीडी पीसीओ। आज क्या कर रहे हैं? मोबाइल। पीसीओ का बिजनेस किसने खा लिया? मोबाइल ने। यस और नो? आंसर इज नो। भरत भाई, अगर सपोज आप और मैं टेलर हैं, हमारे पास आज से 20 साल पहले 100 कस्टमर आते थे और अगले साल 90 आए, आप चेक नहीं करेंगे बाकी लोग कहां गए हैं? और आपको पता चला लोग रेडीमेड ले रहे हैं, अगर आपने अपने काउंटर में रेडीमेड रखना चालू कर देते तो सेम कस्टमर वुड हैव बीन योर कस्टमर। यस और नो? दैट्स अ फैक्ट। सर अगर आप एक पीसीओ चलाते थे और 2 लाख का मीटर होता था, अगले साल 1.5 लाख, आप चेक नहीं करेंगे बाकी लोग कहां गए? और यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि पीपल आर बाइंग मोबाइल फोन, रिचार्ज एंड ऑल दैट। अगर आप अपने काउंटर में रखते, द सेम कस्टमर वुड हैव बीन योर कस्टमर। यस और नो? And that is what we look at, people who change with time, जो समय के हिसाब से नहीं बदलता है ना सर, that is where the problem is. Wealth creation is all about mindset sir. Wealth creation में से कह रहा हूँ, it's all about mindset. आज सर ने वो सर आपने जो mindset कहा ना 10, that is the most important zero sir. That is the only missing zero in life of people sir. And that zero is missing, you don't create wealth. सर मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट केस स्टडी था रायपुर सर। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट केस स्टडी ऑफ माई लाइफ सर। आप जहाँ बैठे हैं ना, वहां पर एक अंकल बैठे हुए थे, मेरे पास आए सेशन के बाद में, उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया भरत भाई, और उन्होंने अपने नाम के आगे लिखा है स्वर्गीय। नाम के आगे क्या लिखा है? तो सोचो आदमी सामने जिंदा है और नाम में क्या लिखा है? स्वर्गीय। तो मैंने बोला सर आप माइंड मत करना, पहली बार किसी से मिल रहा हूं, जो आदमी सामने खड़ा है नाम में क्या लिखा है? स्वर्गीय। तो मेरे को क्या बोलते हैं पता है? बोलते हैं धनंजय भाई मेरे को एक बात बताओ, जो आदमी भारत में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? भारतीय। और जो स्वर्ग में रहता है वो तो मैं तो स्वर्ग में रहते स्वर्गीय लिखा है। एंड लुक एट हिज एक्सटेंशन, उनका एक्सटेंशन सुनिएगा, वो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो भर करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, ना माने तो मर के देख। धनंजय भाई, दिस इज हेल एंड दिस इज हेवन, यू डिसाइड वेयर यू वांट टू लिव। भरत भाई 1947 में जो इंडिया का आजादी हुआ था, उस समय आपका क्या रोल था? अब था ही नहीं। तो जो आदमी कह रहा है कि पहले नहीं था तो बाद में कैसे आएगा? ये सब जब तुमको विश्वास है कि तुम इसके पहले ही नहीं था तो बाद में कैसे आएगा? बोलो 90% लोग ना इस जन्म अगला जन्म में टाइम पास करता रहता, इस जन्म को जीता नहीं है। सर मुंबई में 2 मुंबई पता है आपको सर? मुंबई में 2 मुंबई, सूरत में 2 सूरत, वापी में 2 वापी। वापी में अवध भी है, सूरत में वेसु भी है और मुंबई में हीरानंदानी भी है।
मुंबई में धारावी भी है, यस और नो? वो बोलता है एक ही सिटी में स्वर्ग और नरक दोनों होता है, तुम डिसाइड हो तुमको कहाँ रहने का है। इट्स ऑल फ्रेमिंग ऑफ माइंड। इफ योर माइंड फ्रेम इज नॉट देयर, यू डोंट क्रिएट। सर अभी कौन सा युग चल रहा है मैडम? अभी कौन सा युग चल रहा है? युग कलयुग चल रहा है, यस और नो? और भरत भाई अपने 5 साल के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? अच्छा इंसान बन, माँ बाप का सेवा कर, बड़ों को इज्जत दे, और बाद में क्या बोलते हैं? बेटा कलयुग चल रहा है, भाई भाई को मारेगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। वो कहता है पापा तुम्हारे अंदर लोचा है, तुम डिसाइड करो मेरे को बताना क्या है। पापा ज्ञान कलयुग का दे रहा, बोलता अच्छा इंसान बन। डोंट यू थिंक दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन? सर आपको ये कलयुग वाला ट्रेनिंग दे किसने दिया है? आप सत्युग क्यों नहीं बोलते हैं? सर यहाँ पर जो इन्वेस्टर बैठा है 1 more 0 ऐड करने के लिए, उसका माइंड में चल रहा है कि कलयुग चल रहा है, एंड यू थिंक यू विल क्रिएट 1 more 0? We don't have people who have mindset of Kalyug and they talk about 1 more 0. No, sir. Even though you create it, you will not enjoy it, sir. Sir, 1 more 0 is topic for people who are positive and people who are Satyug mindset. Kalyug mindset लोगों के लिए टॉपिक है ही नहीं, sir. Even though you create it, you don't enjoy that money. तो कहता है मेरे कोच कहते हैं धनंजय हम सत्युग क्यों नहीं बोलते हैं? और सत्युग बोलने में जीएसटी भी नहीं लगता, ये सर नो? और जब आदमी सत्युग बोलना चालू करता है वहां धन का निर्माण होता है। तो मेरा फिर से सवाल, सर अभी कौन सा युग चल रहा है? बस आज का सेशन खत्म, यही एजेंडा था। ये सर, वेलकम टू 1 more 0। सर आप सभी ने कोटेशन पढ़ा है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? कहाँ देखा है सर? ट्रक के पीछे, ये सर नो? सर आज तक किसी ने मर्सिडीज के पीछे देखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? नहीं देखा होगा। आप बाइक में जा रहे हैं, सामने में ट्रक जा रहा है, मर्सिडीज जा रहा है, नजर किसको लगाएंगे? और लिख कौन रहा है? और जूता किस पे लटका हुआ रहता है? और ज्यादा पड़ता किसको? इट्स ऑल अ माइंडसेट सर, इज ऑल माइंडसेट। जहां पर माइंडसेट का लोचा है वहां पर वेल्थ क्रिएशन में लोचा होगा सर। तो मेरे को एक बात बताओ, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या लेकर आए थे? हाथ का मेल। ये जो खतरनाक लोग होते हैं ना, ये माहौल को खराब कर देते कि नहीं धनंजय भाई क्या करेंगे पैसे का। और सर याद रखिएगा सर, मैं आज वहां पर सर प्रेसिडेंट सर के रूम में था, तो मेरे को एक सवाल पूछा गया कि एक मतलब जो उनके साथ बैठे थे उनको किसी ने बोला कि सर ऑलरेडी तो आपका ये एज हो गया है, अब ये पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर आदमी को आंसर लेना बहुत जरूरी है। सर मेरे साथ एक केस स्टडी हुआ गोवा में, 72 ईयर अंकल का एज कितना है? 72। मेरे पास आए, मेरे को क्या बोलते हैं पता है? धनंजय आई एम 72, मेरा बच्चा सेटल्ड है इन यूएस, मेरा खुद का घर है, गाड़ी है, पेंशन है, ज्वेलरी, म्यूचुअल फंड, एफडी सब कुछ है। अब मैं 72 का एज में पैसा क्यों हुए? दिस अ वेरी सीरियस क्वेश्चन दैट नीड टू बी एड्रेस्ड टू द एंटायर सोसाइटी सर। अभी इंडिया में दिक्कत क्या पता है? जब पापा 60 साल का होता है ना, बच्चे लोग महान बन के पापा को घर पे बैठा देते हैं कि पापा तूने बहुत काम कर लिया, घर पे शांति से बैठे। सर पापा घर पे बैठेगा तो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, याद रखिएगा। Yes or no? If a person doesn't have a purpose to be alive tomorrow, he'll become an old person. Yes or no? That's a fact. तो मेरे को उसने बोला कि धनंजय मेरा तो सब कुछ है, मैं पैसा क्यों है? मैंने बोला अंकल आप जो कह रहे हैं 100% सही है, और मैं भी ऐसे ही सोचता था। सर मैंने एक शायर को सुना और उनको सुनने के बाद मेरा सोचने का तरीका बदल गया। शायर क्या कहते हैं पता है सर? शायर कहते हैं इंसान को धन के पीछे तब तक भागना चाहिए जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है। Yes or no? And that is what we बोल रहे। सर रतन टाटा सर 84 के एज में ऑफिस आते थे, yes or no? सर आज आपके जो भी ऑफिस बेयरर हैं चैम्बर के, सर डू यू थिंक दे आर कमिंग हियर फॉर मनी? दे हैव ऑलरेडी अर्न इनफ मनी। अगर पर्पस मनी होता तो दे वुड हैव स्टॉप कमिंग हियर, yes or no? वो कहते हैं माय पर्पस ऑफ लाइफ इज आई वांट टू मेक अ डिफरेंस। सर मेरा घर हो गया, मेरा बेटा सेटल हो गया, इट्स अ वेरी सेल्फ सेंट्रिक गोल सर। अगर आप स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ेंगे ना, वो क्या लिखते हैं पता है? द पर्पस ऑफ लाइफ इज यू शुड बी अलाइव आफ्टर योर डेथ। द पर्पस ऑफ लाइफ इज यू शुड बी अलाइव आफ्टर यू आर डेड। दैट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। अभी इंडिया में दिक्कत क्या पता है? लोग नाम पहले देते हैं, दान बाद में देते हैं। तू नाम लिखी पढ़, लेकिन नाम पहले बनाने नाम लिखते हैं। आप कोई भी सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइएगा, वहां पंखा में नाम लिखा हुआ रहता है, दिस फैन इज डोनेटेड बाय रमन लाल अग्रवाल। ये सब नो, उसका आत्मा घूमता रहता है, टुकु टुकु टुकु। दादाजी बोल रहा है ये भैया मेरे को साथ बैठेगा नहीं, आत्मा घुमा रहा है इसका। एंड दैट इज वेयर द लॉजिक इज। So we need people with great attitude and great mindset, and that is what will make you great investor. सर ये टॉपिक मनी और लाइफ को लेके है, there is no other business. सर ये टॉपिक सिर्फ मनी और लाइफ को लेके, मनी और लाइफ क्लियर है ना, इन्वेस्टिंग क्लियर है। जहां मनी और लाइफ में लोचा होगा ना सर, यू विल नेवर बिकम अ ग्रेट इन्वेस्टर। मनी एंड लाइफ गेट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, राइट? एक चीज तो क्लियर है कि पैसा तो चाहिए, वी डोंट डिबेट ऑन दिस, यस और नो?
वंडरफुल. लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन. सर, अभी भी सूरत में ज्यादा पैसा किनके पास है? जिनका उम्र 30 साल से ऊपर है या 30 साल से कम है? अभी भी जिनका उम्र 30 साल से ऊपर है, बरोबर. अब मेरा सेकंड सवाल, मोबाइल ज्यादा किसका महंगा है? बस यही आंसर चाहिए था. सर, आज का पीढ़ी खर्चा करने वाला पीढ़ी है और आपका पीढ़ी पैसा बचाने वाला था. दिस इज कॉल्ड जनरेशनल शिफ्ट इन फाइनेंशियल मार्केट. सर, आज का पीढ़ी पैसा खर्चे करने वाला और आपका पीढ़ी पैसा बचाने वाला. सर, आज का पीढ़ी को ज्यादा टेंशन है. आज का पीढ़ी को ज्यादा टेंशन है. पता है सर क्या? उसको खुद का भी पैसा सल्टाना और पापा का पैसा सल्टाना. ये बोलते पापा तो कुछ सल्टा नहीं पाएगा, मेरे को ही सल्टाने का. कितना टेंशन है सोचो उसको. सर, ये लोग एयरपोर्ट में 400 को कॉफी पी जाते हैं. अभी भी मैं 70 रुपए का पानी नहीं खरीदता हूँ. ये सुनो, क्योंकि सर हमने बचपन से पैसे की कमी देखी है. सर, जिसने बचपन से पैसे का प्रॉब्लम देखा है वो पैसा आने के बाद भी खर्चा नहीं कर पाएगा. क्यों? पता है, क्योंकि उसने प्रॉब्लम देखा है. देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग. इन्वेस्टिंग में आप बोल रहे हैं ना कि गलत नहीं, नथिंग इज रॉन्ग राइट. देयर इज अ जनरेशन शिफ्ट. उसका सोचने का तरीका अलग है और आपका तरीका अलग है. सर, उसका स्ट्रगल चालू होगा BMW से, आपका स्ट्रगल साइकिल से चालू हो ना, उसका स्ट्रगल BMW से होगा. उसका रेस रॉयल्स रॉयल वाला है. Why are we comparing? सर, हम बोलते हैं ना बच्चों को कि तुमको तो इतना कंफर्टेबल लाइफ. सर, उसका कंफर्टेबल लाइफ उसका स्ट्रगल पॉइंट है, आपका पेनफुल आपका स्ट्रगल पॉइंट है, उसका बेटे का और कुछ होगा. ये सर, नो, डोंट ट्राई टू कंपेयर. पुराना डायलॉग बाजी नहीं चलेगा. मेरे दादाजी मुझे क्या बोलते थे पता है? मैं बचपन में ना स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था. क्या बोलते थे? मैं बचपन में स्ट्रीट लाइट. मैं बोलता आप दिन में क्या करते थे? तो गुस्सा हो गया. वही पुराना डायलॉग आदमी नहीं सुनेगा. सर, आप अच्छा बात करो, वो बात करो जो लॉजिकल है. डोंट गेट इनटू ऑल फालतू वाली बात. पीपल विल नॉट लिसन टू यू. व्हाट इज हैपनिंग इज, सर, इंडिया में सबसे बड़ा चेंज हो रहा है, अ थॉट ऑफ चेंज फॉर थॉट प्रोसेस. और सर, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है पता है? कोविड. सर, कोविड ने भारत में लोगों का सोचने का तरीका बदल दिया. यस और नो? कोविड has changed the way people think, sir. COVID has totally changed. सर, कोविड में क्या हुआ पता है? एक ऐसा चीज हो जो होना नहीं था. मैडम, कोविड में 35 साल का लड़का चला गया और 60 साल के पापा जिंदा रह गए. और ये लोगों को बात डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसलिए लोगों ने लाइफ को इतना सीरियस लेना छोड़ दिया है. सर, आप देखिए, पोस्ट कोविड पीपल आर टेकिंग मोर वेकेशन. यस और नो? कोविड के बाद लोग ज्यादा घूम रहे हैं बिकॉज दे हैव बिलीव दैट लाइफ में जो इतना पोस्टपोन कर रहे थे ना, इतना पोस्टपोन करने का जरूरत नहीं है. दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. सर, सर, आपका, हाँ मैडम, आपका खर्चे का पैटर्न में बदलाव हो गया है. आगे पापा का पगार आता था 30 तारीख को, 1 तारीख को लिस्ट बनता था घर का, ऊपर चिट्ठे में लिखते थे श्री गणेशाय नमः और 20 आइटम का लिस्ट बनता था. यस और नो? और मैडम, आप किराने वाले को 20 आइटम का लिस्ट देते तो कितना आइटम देता था? अगर आप किराने वाले को 20 आइटम देंगे ना सर, वो आपको देता था 16 आइटम. क्या बोलता था? साहब, ये 4 आइटम नहीं है, कल आके ले जाइए. आप जितना मांगते थे उससे 4 आइटम कम मिलता था. और मैडम, आज हम जाते हैं मॉल में 5 आइटम लेने, लेके कितना आते हैं? बस यही आपके साथ हो रहा है. द प्रॉब्लम इज नॉट एक्सटर्नल सर, द प्रॉब्लम ऑफ मनी मैनेजमेंट इज इंटरनल एंड दैट इंटरनल हैज टू बी एड्रेस. सर, हम जो ब्लेम कर रहे हैं ना सरकार को, इसको उसको, सर, ब्लेम इज यू. सर, आप खुद को ब्लेम करो. मेरा जो खर्चे का पैटर्न है ना, इट हैज बिकम रॉन्ग एंड दैट इज वेयर आई एम स्ट्रगलिंग टुडे. तो मैडम, एक बार क्या होता है ना, एक हस्बैंड को ऐसा फील होता है कि उसकी वाइफ को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है. अब डायरेक्टली वाइफ को तो बोल नहीं सकता है सर, घर पे भी रहना है, तो अपने डॉक्टर दोस्त को बोलता है कि भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, गिव मी सम सॉल्यूशन. उसका डॉक्टर दोस्त बोलता है, आर यू श्योर? वो कहता है, 100% श्योर, देयर इज सम प्रॉब्लम, गिव मी सम सॉल्यूशन. तो सर, उसका डॉक्टर दोस्त बोलता है, एक काम कर, मेरे को एक बात बता, ये प्रॉब्लम कितना दूर से हो रहा है? बोलता भाई, कितना दूर से हो रहा है ये प्रॉब्लम, ये तो मेरे को नहीं पता है, बट प्रॉब्लम तो 100% है. तो उसका डॉक्टर दोस्त बोलता है, काम कर, तू रात को घर पे जा, घर पे जाके चेक कर कि कितना दूर से प्रॉब्लम है, सो दैट आई कैन गिव यू सम एडवाइस. तो भैया, वो रात को घर पे पहुंचता है, वाइफ किचन में खाना बना रही है और ये पार्किंग में खड़ा है, और ये पार्किंग में चिल्ला के बोलता है, जानू मैं आ गया, खाने में क्या बना है? वाइफ का रिप्लाई नहीं आता, मतलब यहां से सुनाई नहीं दे रहा है. सर, वो फिर चला जाता है ड्राइंग हॉल में, ड्राइंग हॉल में जाके कहता है, जानू मैं आ गया, खाने में क्या बना है? वाइफ का रिप्लाई नहीं आता है. सर, वो फिर चला जाता है किचन के गेट के पास, वहां पर जाके कहता है, जानू मैं आ गया, खाने में क्या बना है? वाइफ का रिप्लाई नहीं आता है.
सर वो किचन के अंदर एंटर करता है, उसके कान के पास जाता है और कान के पास जाके कहता है जानू मैं आ गया, खाने में क्या बना है? वाइफ बोलती है 4 बार से तो बोल चुकी हूँ कड़ी चावल बनाए। ये सब प्रॉब्लम वाइफ के साथ नहीं था, प्रॉब्लम इसके साथ। तो एक बार आप चेक कर लो कि लोचा आपके साथ तो नहीं है। You can't blame external factors sir. Sometimes you have to blame the internal factor that is resulting in your cost. हर चीज बदला है सर। आप चेक करो, जो आज से 20 साल पहले लग्जरी था वो नेसेसिटी है सर। आज से 10 साल पहले कोई आदमी फ्लाइट से आता था, बड़ा आदमी था। अभी लेबर जो है ना सूरत के, वो ट्रैवल करते हैं बाय फ्लाइट, ये सर नो। आगे आपका स्टाफ ट्रेन से आता था, फ्लाइट से जाता था। अभी स्टाफ और मालिक दोनों फ्लाइट से जाता है। दैट इज हैपनिंग सर। आगे आज से 20 साल पहले आपके घर में एक ही साबुन आता था, लाइफ बॉय, उसको भी 2 टुकड़ा करते, बंटवारा होता था। यस सर। लाइफ बॉय का भी 2 टुकड़ा होता था। यस, बिफोर टू गो बैक 20 years सर। सर अभी हर मेंबर के लिए एक साबुन है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, खानदानी स्किन। ये सर नो, हर मेंबर के लिए। बच्चा जन्म बेबी सोप, ये सर दैट इज हैपनिंग सर। और मजे का बात क्या पता है मैडम सर, लोग स्ट्रॉबेरी का फेस वॉश लगाता है, खाता पिज्जा है। अरे भाई स्ट्रॉबेरी खाने का है, लगाने का नहीं है सर। वो घस रहा है, बोलता ग्लो नहीं आ रहा। ग्लो आएगा कैसे? तेरे को खाने का है, तेरे को लगाने का नहीं है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। देयर इज अ चेंज इन फैमिली पैटर्न सर। इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स बेटर क्वालिटी सर। आगे फैमिली कैसा होता था इंडिया में? पापा वाज द अर्निंग मेंबर, मम्मी घर संभालता था, 3 बच्चा होता था। ये सर नो, आप देखो जो भी 35-40 प्लस है, आपका घर में यही फैमिली होगा पैटर्न। द फादर वॉज द अर्निंग मेंबर, मम्मी घर संभालता था, 3 बच्चा होता था। ये सर नो, बरोबर है सर। अगेन आई रिपीट, फादर वॉज द अर्निंग मेंबर, मम्मी घर संभालता था, 3 बच्चा होता था। यानी कमाने वाला 1, खाने वाले 5 ना। पापा भी खाएगा राइट, पापा भी आगे खाएगा राइट। कमाने वाला है, खाने वाले 5। अभी पापा भी कमा रहा है, मम्मी भी कमा रहा है, बच्चा कितना हो रहा है? 1 या मैक्सिमम 2 सर। एक जमाने में 6 बच्चे भी होते थे। ये सर नो, एक जमाने में 6 बच्चे भी होते हैं सर। उसको हम फाइनेंशियल टर्म में बोलते हैं पोर्टफोलियो। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। और बाद में पता चला सबका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। ये सर नो, कोई काम का नहीं निकला, सब आरकॉम निकल गए हैं। इनको रखने का जरूरत नहीं है, इसलिए ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है। एसेट एलोकेशन लिमिटेड करो, पोर्टफोलियो रिटर्न ज्यादा अच्छा बनेगा। ये सर नो, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मनी मैनेजमेंट। दे बिलीव इन बेटर सर। आपके यहाँ सूरत में जूडियो होगा, जूडियो का शोरूम आउटलेट होगा राइट सर। जूडियो ने क्या क्या पता है? जो आदमी फुटपाथ से खरीदता है वो मॉल में ले रहा है। दैट्स कॉल्ड फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। एक इकोनॉमी तब बढ़ता है सर जब लोग फॉर्मल इकोनॉमी ज्यादा आते हैं। अभी जो इंडिया का पर कैपिटा $2,500 के आसपास जा रहा है ना, व्हाट विल हैपन इज लोअर एंड मिडिल क्लास जो है ना, वो एस्पिरेशन में आ जाएगा। सर आपके घर में जो मेड आती है ना, उसके घर में वही आइटम है जो आपके घर में है। There can be difference of brand, but they have the same item that you have. उसके घर में भी ग्राइंडर होगा, उसके घर में भी फ्रिज होगा, उसके घर में भी टीवी होगा। ये सर नो, आप मॉल पे जाइए, सूरत का जो भी टॉप मॉल है ना सर, उसमें 80% लोग जो फूड कोर्ट में मिलेंगे ना, कौन मिलेगा पता है? लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग। वो ठेला में जो खा रहा था उसको भी लगता है मैं मैकडी में जाके बर्गर खाने का है, उसके लिए वो एस्पिरेशन है। ये सर नो। और जो मैकडी में खा चुका है उसके लिए एस्पिरेशन क्या है? KS अंतरवन, KS चारकोल। ये सर नो, वहां पर जाके खाएगा। जो आदमी टपरी में कॉफी पीता था वो मिराकी का कॉफी पी रहा है। आई होप यू गेटिंग दैट। देयर इज अ चेंज इन एस्पिरेशन, दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग इन इकोनॉमी सर। इकोनॉमिक्स का बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल ये कहता है योर इनकम इज समबडीज एक्सपेंसेस। सर आने वाले 5 साल में आपका खर्चा बढ़ेगा। ये सर नो, तो आपका खर्चा बढ़ेगा मतलब किसी का इनकम बढ़ेगा। और ये खर्चा हो कैसे रहा है सर, ये इंपॉर्टेंट है सर। 80% एप्पल का मोबाइल EMI में बिकता है। ये सर नो, 80% सर। इंडिया में भी 3 ही क्लास है सर। अभी इंडिया हैज 3 क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास एंड EMI क्लास। सर इंडिया हैज 3 क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास एंड EMI क्लास। लोग हनीमून लोन लेके जा रहे हैं। ये समझ, हनीमून का लोन अभी आ गया सर। अभी आई वाज डूइंग अ टीवी शो फॉर DD न्यूज, तो वहां पर मेरे को सवाल पूछा गया, धनंजय भाई खुद का घर लेना चाहिए या फिर भाड़े के घर में? अभी डिबेट चल रहा है ना सोशल मीडिया में कि बाइंग अ हाउस और रेंटिंग हाउस। सर ये मेरा मानना है एक घर खुद का होना चाहिए। सर नो, मेरे को लगता है कि आपका एक घर तो खुद का होना चाहिए सर, ये लॉजिक है। सेकंड, आपको चेक करना है कि क्या मेरा करंट सिचुएशन अलाउ करता है कि नहीं करता है। लॉजिकली यू आर राइट दैट यू शुड हैव योर ओन हाउस वन, बट वेदर माय करंट सिचुएशन इज अलाउइंग मी और नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर अभी सूरत में एक 3 BHK ऐसा सोसाइटी में रेट कितना चल रहा है? 1.5 करोड़। अच्छा सोसाइटी में 1.5-2 करोड़ के आसपास
राइट? 1.5-2 करोड़ लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ लेते हैं। अब सर जब कोई आदमी घर लेता है ना, उसमें 2 खर्चे हैं, याद रखिएगा। एक होता है कॉस्ट ऑफ बाय और दूसरा होता है कॉस्ट ऑफ एंट्री। रिमेंबर दिस टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ बाय एंड सेकंड इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एंट्री। भैया अगर आप 2 करोड़ का घर ले रहे हैं ना, तो आपको 50 लाख का इंटीरियर करना पड़ेगा। यस, इफ यू वांट टू बाय अ हाउस ऑफ 2 crores, योर इंटीरियर विल बी अराउंड 50 लाख रुपीस। यानी भैया कॉस्ट ऑफ एंट्री कितना हुआ? 2.5 करोड़। और आदमी घर कैसे ले रहा है पता है? आदमी घर ले रहा है 80-20 रेशियो, 80% लोन, 20% डाउन पेमेंट। यस, दैट्स द इक्वेशन। अब ये करने के बाद में फेसबुक में फोटो डालता है, विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड हैप्पी टू शेयर माय हाउस वार्मिंग पार्टी। यस और नो? सर आप कमेंट बॉक्स में डालो, ये लिख लोन कितने का लिया है। यस और नो? सर वो जो बाथरूम का जो कॉमोड एरिया है ना, वो खाली उसका है, बाकी पूरा बैंक का है। आप उसको कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। ओनली द बाथरूम कॉमोड एरिया बिलोंग्स टू हिम, रेस्ट ऑल इज बैंक का। सर जो आदमी 1 लाख रुपए का ईएमआई बांधता है उसको आप कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, और जो आदमी 1 लाख का एसआईपी करता है उसको डराते हैं, लुट जाएगा, डूब जाएगा, मिट जाएगा। ये सुनो, दैट इज द प्रॉब्लम सर। इस कंट्री में यू सेलिब्रेट ईएमआईज and you become a problem when people start SIPs. That's the biggest challenge sir. जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको डराते हैं, और जो EMI चालू करता है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। सर याद रखिएगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आपका SIP चल रहा है, आपको पैसा तभी बनेगा जब आपका पड़ोसी का EMI चल रहा होगा। हर EMI वाला SIP वाले को पैसा बना के देता है। यस और नो? तो आप जब खुद का SIP चालू कर रहे हैं, भगवान से दुआ करें कि आपका पड़ोसी का EMI चालू हो जाए। हर आदमी SIP करेगा तो पैसा नहीं बनेगा। दैट इज व्हाट मनी मैनेजमेंट ऑल अबाउट, राइट? सो वी टॉक अबाउट ग्रेट मार्केट एंड वी टॉक अबाउट ग्रेट माइंडसेट। एंड सर भारत में सर प्लीज अंडरस्टैंड सर, इस देश को घूम के देखना, मीडिया के हिसाब से मत देखना सर। रिमेंबर दिस, अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है ना सर, इस देश को घूम के देखना, मीडिया के हिसाब से मत देखना। मीडिया के हिसाब से देखेंगे तो ये देश रहने लायक नहीं लगेगा आपको, और घूम के देखना तो इससे अच्छा देश आपको मिलेगा ही नहीं। यस और नो? सर इंडिया इज नॉट अ कंट्री सर, इंडिया इज अ कॉन्टिनेंट। रिमेंबर दिस, ये देश कंट्री नहीं है, कॉन्टिनेंट है सर। 28 स्टेट्स, इट इज स्पेशल कंट्री। सर यूपी जितना बड़ा है ना, उतना बड़ा यूएस है। द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ यूपी इज इक्वल टू यूएस। लोग सिंगापुर घूम के आते हैं, फिर क्या ज्ञान देते हैं पता है? धनंजय भाई सिंगापुर तो सरस है, सिंगापुर सूरत का 20% नहीं होगा। You are trying to compare a country which is not 20% of सूरत सर। कंपैरिजन ही अपने आप में बेंचमार्किंग गलत है। हाउ डू आई कंपेयर सिंगापुर विद सूरत? कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे सर। सर डोंट डाउट द ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री सर। रिमेंबर वन थिंग सर, आप मेरे पे भरोसा करो नहीं करो सर, ओके, डोंट क्वेश्चन द ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री सर। ये कंट्री को अगर आपने क्वेश्चन किया ना, यू विल ऑलवेज फेस प्रॉब्लम सर। ये कंट्री विल ऑलवेज गेट इनटू अ डिफरेंट स्पेस ऑल्टुगेदर, एंड दैट इज व्हाट वी डू। तो एक चीज तो क्लियर है कि माइंडसेट में क्लैरिटी आ गया और मार्केट में क्लैरिटी है। दैट इज हाउ वी क्रिएट वेल्थ। ये 2 चीज चाहिए, अच्छा माइंडसेट और अच्छा मार्केट सर। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सेशन। सर आप सभी ने बोला कि आने वाले 5 साल में आपका खर्चा बढ़ेगा। यस और नो? सर यस और नो? यस। अब मेरा सवाल है, क्यों बढ़ेगा? खर्चा बढ़ेगा, बरोबर है, क्यों बढ़ेगा? रीजन? महंगाई, इन्फ्लेशन, वंडरफुल, ग्रेट, व्हाट एल्स सर? लाइफस्टाइल, एस्पिरेशन, एब्सोल्युटली राइट, एस्पिरेशन, लाइफस्टाइल, वंडरफुल सर, व्हाट एल्स? एक तो हो गया आपका इन्फ्लेशन, सेकंड इज एस्पिरेशन, व्हाट एल्स? द थर्ड रीजन इज हेल्थ, health will be a cost going ahead. The fourth reason is responsibility. You get married, you had kids, that is the cost. The fifth reason is tax. जो कमाता है उस पे इनकम टैक्स, जो खर्चा करता है उसमें जीएसटी। ये सब ना सर, अभी लोग क्या ज्ञान देते हैं पता है धनंजय भाई? इंडिया में ना लोग इनकम टैक्स बहुत कम देते हैं। मैं कहता हूँ सर इनकम टैक्स लोग बरोबर दे रहे हैं सर, क्योंकि आपको डेटा जो है ना सही इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। अभी इंडिया का आबादी कितना है? 140 से 50 करोड़ अप्रोक्सीमेटली वही होगा ना सर, 140 से 150 करोड़। एंड सर अभी भी इंडिया का मॉडल क्या है? एक अर्निंग मेंबर होता है, 4 डिपेंडेंट होता है। ये सॉल्व नो? दैट मीन्स 20% पॉपुलेशन इज एक्चुअली अर्निंग, रेस्ट 80% इज डिपेंडेंट, बरोबर? तो सर 150 का 20% हाउ मच? 30 करोड़, यानी 30 करोड़ पॉपुलेशन जो है अर्निंग में है। इंडिया का आबादी का 67% लोग एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर सेक्टर में, 67 is still employed in agriculture. तो 70% के आसपास एग्रीकल्चर इज टैक्स फ्री, एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्स फ्री इन इंडिया सर। तो वहां पर 70% माइनस कर दें, 30 का 70% हाउ मच? 21, बचा कितना सर? 9 करोड़। 9 करोड़ में 30-40% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, दे डोंट गेट फॉर्म 16 और एनी टीडीएस सर्टिफिकेट। कितना बचा सर? 5 से 6 करोड़, एंड दैट इज व्हाट द डेटा इज।
ये सर नो, सो व्हाट आई एम सेइंग इज सर, आप डेटा को लेके बोलते हैं इतने कम सर, जो आदमी कमा रहा है उसको तो देना ही पड़ेगा ना सर, यू डोंट हैव अ चॉइस। यस, कोई कम दे रहा है ज्यादा, दिस इज डिफरेंट टॉपिक, बट पीपल आर पेइंग, एंड एक्चुअली एवरीवन इज पेइंग टैक्स। सर अगर घर पे बच्चा जन्म होता है, उसका जो डायपर खरीदते हैं ना उसमें टैक्स लगता है, यस और नो? So when we say people don't pay tax, that's a myth. People do pay tax, maybe indirect tax, not direct tax. Tax तो हर आदमी दे ही रहा है, भैया वो बच्चा पैदा होने से चालू हो जा रहा है उसका। I hope you're getting the context, sir. That means that this country will be driven by 5 things, sir. ये 5 चीज आप रट्टा मार लो, this subject becomes wonderful. Inflation, lifestyle, health, tax, responsibility. सर ये 5 खर्चे को एड्रेस करना जरूरी है इस सिचुएशन में। आप नहीं करेंगे, नेक्स्ट 10 years will be challenging. सर मैं ये सेशन कर रहा था आज से 6 साल पहले इन्फोसिस में, मैंने लोगों को बोला कि सर यू हैव टू प्लान योर मनी, यू हैव टू मैनेज द मनी। तो एक लड़का खड़े होकर क्या बोलता है पता है? अरे सर हम पैसे को लेके इतना टेंशन क्या ले रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने बोला सर देखो मर्जी आपका है, लाइफ आपका है। और भरत भाई वही लड़का 3 महीने पहले कॉल करके क्या बोल रहा है पता है? बोलता है सर जो हो रहा है देखा नहीं जा रहा है। ये सर नो, ये जो लोग बोलते हैं ना जो होगा देखा जाएगा, बाद में क्या बोलेंगे? जो हो रहा है देखा नहीं जा रहा है। सर मेरी 2 बेटी है, एक 11 साल की, एक 7 साल की। मेरे को देखना पड़ेगा ना कि आज से 10 साल बाद क्या खर्चे होंगे। ये सर नो भैया, आज से 30 साल बाद आप और मैं दोनों बूढ़े हो जाएंगे, बरोबर भरत भाई? आज से 30 साल बाद दोनों बूढ़े हो जाएंगे, और नियम कहता है कि जब आप बूढ़े हो जाएं आपका पैसा जवान हो जाना चाहिए। When you become old, your money should become young. सर जवानी का गरीबी चलेगा सर, बुढ़ापे का गरीबी डेंजरस। जवानी में सर मेरे पास एनर्जी है, मैं कमा लेगा। बुढ़ापे में ना ही तेरे पास पैसा है ना ही एनर्जी है, दैट इज वेयर लाइफ विल बिकम प्रॉब्लमेटिक। फिर आदमी 2 ही पिक्चर देखता है, बागबान और अवतार, ये तो रोता रहता है। अरे भाई तेरे को नहीं पता तू डोकरा बनने वाला है, तेरे को प्लानिंग करना था ना। What I am saying is this, no, people are not when practical, they get into all this mess, sir. Don't challenge this subject. सर आज का सेशन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आप पैसा खर्चा मत करो सर, आई एम नॉट हियर टू से। सर मेरा सेशन का आज का ऑब्जेक्टिव है कि यू शुड बी माइंडफुल अबाउट मनी, यू शुड नॉट बी मनी माइंडेड बट यू शुड बी माइंडफुल अबाउट, दैट्स अ डिफरेंट थीम ऑल टुगेदर। एक होता है मनी माइंडेड, एक होता है माइंडफुल अबाउट मनी। और सर मैं आपको एक ऐसी चीज शेयर करके जा रहा हूं जो आपको कोई स्पीकर शेयर नहीं करेंगे। जो आदमी पैसा कमा के खर्चा नहीं करता है ना सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो आदमी पैसा कमा के खर्चा नहीं करता ना सर, ऊपर वाला उसको भी बहुत बड़ा सजा देते हैं, पता है क्या? सर जब वो ऊपर चले जाता है ना, भगवान उसका गर्दन पकड़ता है, ऐसे नीचे दिखाते हैं, बोल देख तेरा पैसा लोग कैसा खर्चा कर रहे हैं। ये सर ना, तो यहाँ पर जो कोई कंजूस है ना, जो खर्चा नहीं कर रहा है, बाद में ऊपर से देखेंगे तो बहुत तकलीफ वगैरह। धनंजय भाई आपने मेरे को ये बोला नहीं था, थोड़ा बहुत खर्चा कर लेना चाहिए। तो आपने सबसे पहले बोला इन्फ्लेशन। सर इन्फ्लेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, इन्फ्लेशन इज द स्ट्रेंथ फॉर एवरी इन्वेस्टर। सर आपने आज से 10 साल पहले 10 लाख का सोना लिया और तिजोरी में रखा है, आज वैल्यू कितना हो गया? 43 lakhs. You have purchased and you have kept, it has become 43 lakhs. How? Inflation. Your 10 lakhs land has become 50 lakhs, 40 lakhs because of what? Inflation. Your 10 lakhs म्यूचुअल फंड का कोई अच्छा स्कीम जिसने अच्छा काम किया है 70, 80, 90 लाख तक पहुंच गया। How? Inflation. Sir, inflation is a strength for every investor. Inflation is never a problem, sir. Inflation is a problem for people who don't have asset. जिसके पास एसेट नहीं है ना, इन्फ्लेशन उसके लिए प्रॉब्लम है सर। जिसके पास एसेट है उसके लिए इन्फ्लेशन ताकत है। इन्फ्लेशन सबके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं सर। इसीलिए कहते हैं योर इनकम इज नॉट ए इनकम सर, योर सेविंग इज योर इनकम। योर इनकम इज नॉट ए इनकम, योर सेविंग इज इनकम। सर अगर आप कमा रहे हैं साल का 10 लाख और खर्चा 10 लाख है, आपका इनकम 0 है। जो आप कमाते हो आपका इनकम नहीं है, जो आप बचाते हैं आपका इनकम है। और पैसे का एक ही धर्म है, पैसा कहता है तुम मुझे आज बचाओ मैं तुम्हें कल बचाऊंगा। ये सुनो, दैट इज व्हाट मनी मैनेजमेंट ऑल अबाउट। सर आपका गुड नेम? कल्पेश। कल्पेश भाई मेरे को एक बात बताओ, जहाज किसके ऊपर चलता है? जहाज पानी पर, बरोबर। और कल्पेश भाई उसको डूबता किसमें है? वो क्या बोलते हैं, डूबता भी पानी में। ऐसे कैसे हो सकता है? सर आपका इनकम आपका जहाज है और आपका खर्चा आपका पानी है। जब तक जहाज ऊपर पानी नीचे, आपका जहाज चलता रहेगा। और जब पानी ऊपर आ जाएगा और जहाज नीचे जाएगा, आपका जहाज डूब जाएगा। एंड दैट इज व्हाट मनी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। यस और नो? योर इनकम इज योर जहाज एंड योर खर्चा इज योर पानी। सर ऑलवेज मेंटेन अ गैप।
गैप मेंटेन नहीं करेंगे सर, आप क्या मैं क्या सर, ब्रह्मांड में आप किसी स्पीकर को लाइए, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। यू नीड टू हैव सरप्लस टू क्रिएट वेल्थ। सर कि जिस नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं ना घी ना कढ़ाई बनाने चले मिठाई, जिसके पास घी नहीं है कढ़ाई नहीं है। एक बंदा सर 40 साल के अंकल, एक बंदा आके ट्रेनिंग में क्या बोलता है, अरे धनंजय सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। कितने एजेस है? 40। मैंने बोला सर आप जो पब्लिक में बोल रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, इट इज एन इंसल्ट टू योर फैमिली। अगर 40 साल का आदमी अगर पब्लिक में बोल रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, डोंट यू थिंक इट्स एन इंसल्ट टू योर फैमिली? यू आर एन इररेस्पॉन्सिबल फादर। यस और नो? पीपल कांट मेक दिस सेंटेंस एट द एज ऑफ 40 मेरे पास पैसा नहीं है। भाई बरोबर तुमको काम करने का है, प्लान करने का है, यू हैव टू बी रैशनल। भगवान ने आपको इंसान बनाया तो टॉक लाइक ए ह्यूमन, डोंट टॉक लाइक एनिमल। मैं बार बार कहता हूँ अगर देखो ये जो मेरे पास लग्जरी है ना बकरी के पास नहीं है। सर याद रखना सर, बकरी आपने कभी देखा है कोई जंगल में बकरी अपने फोटो पापा का फोटो लगा के पापा अपना इतना कुछ छोड़ के गए हो? नहीं लगाए, वो पर कर नहीं सकते सर। लेकिन आप कोई मारवाड़ी दुकान में जाइए, दादा परदादा सबका फोटो रहेगा, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड वेल्थ एंड दे पास द फाउंडेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। यस और नो? एंड दैट इज व्हाट विल मेक अस ह्यूमन। इंसान है तो इंसान बन के रहेगा तो मजा लाइफ में ज्यादा आएगा। दिस इज व्हाट वी डू। ये सुनो व्हाट आई एम सेइंग, इट्स कंटेक्स्ट चेंज कीजिए सर। एक्चुअली पिछले 10 साल में आपका खर्चे का प्रॉब्लम इज नॉट इन्फ्लेशन सर, द प्रॉब्लम इज योर लाइफस्टाइल। द प्रॉब्लम दैट वी आर एड्रेसिंग इन दिस फोरम टुडे इज योर लाइफस्टाइल सर, इट इज नॉट इन्फ्लेशन। महंगाई प्रॉब्लम नहीं है सर, प्रॉब्लम आपका लाइफस्टाइल है। भरत भाई आपको दाल रोटी का टेंशन है कि कल सुबह दाल चावल कहां से खाएंगे? सर आपको दाल रोटी का, कोई दाल रोटी के बाद बैठा ही नहीं है सर। वी आर नॉट हियर ईटिंग फॉर दाल रोटी सर, आपको दाल रोटी का टेंशन है ही नहीं सर। हर आदमी इस हॉल में बैठा है अपने सपनों के लिए। यस और नो? एक शायर कहते हैं लोग अपने जरूरतों से परेशान नहीं है, ख्वाहिशों से परेशान है। पीपल आर नॉट वरीड अबाउट देयर नेसेसिटी, दे आर वरीड अबाउट देयर एस्पिरेशन। यस और नो? दैट इज द कंसर्न एरिया। द प्रॉब्लम इज नॉट इन्फ्लेशन सर, द प्रॉब्लम इज लाइफस्टाइल। और सर ये जो हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है ना, इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है पता है? इन द लास्ट 10 years आपका लाइफस्टाइल बदलने में सबसे बड़ा हाथ है आपके स्मार्टफोन का। आपके स्मार्टफोन में 3 प्यारा प्यारा ऐप, कौन कौन सा ऐप है? व्हाट्सएप, फेसबुक और सस्ताग्राम। ये सुनो इंस्टाग्राम, राइट? व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम। और मैडम जितने भी जन यहाँ बैठे हैं हम सब ने कसम खाया है हम दिन में 8 से 10 बार फेसबुक में माथा टेकेंगे। यस और नो? एक बार चेक करेंगे हमसे ज्यादा कुछ तो कोई नहीं है। आदमी सोशल मीडिया में ये तो कर रहा है। भरत भाई, कल्पेश भाई, ये तो चेक कर हमसे ज्यादा कुछ तो कोई है नहीं। और सर अगर गलती से आपके कोई दोस्त ने अपने वाइफ के साथ घूमने का फोटो डाल दिया और रात को मैडम ने देख लिया तो मैडम क्या बोलेंगे? मैडम बोलेंगे दो मैजिकल वर्ड, क्या पता है सर? कुछ सीखो, कुछ सीखो। इधर लगता है ये सब। और आदमी सीखने के बाद जाता है गोवा, सूरत में सीखने के बाद जाता है कहाँ? गोवा से। और जैसे आप गोवा पहुंचते हो मोबाइल निकालते हो, क्यों निकालते हो? नहीं सर उसने आग लगाई हम भी आग लगाएंगे। ये सब इसको बोलते हैं आग लगाना। इसको क्या बोलते हैं? आग लगाना। और जैसे ही सर आपने अपना मोबाइल निकाला आपके दोस्त ने सिंगापुर की फोटो डाल दी। अब माथु फोटो चलोगा, हम तो डोमेस्टिक आउट है, वो इंटरनेशनल जाऊ है। ये सब ना आप डांडिया खेलते रहिए। In the last 10 years, the problem is people are trying to compete and spend. That's the biggest problem. I'm not against spending, sir. Problem is competition-based spending, sir. शर्मा ले रहा है बुलेट तो वर्मा ले रहा है बुलेट. He doesn't want it. He just try to prove people. और वारेन बफेट साहब कहते हैं, we try to spend on things that we don't need to impress people who don't like us. हम उन चीजों पे खर्चा करते हैं जिसकी हमको जरूरत नहीं है, उनको इम्प्रेस करने जो हमें पसंद नहीं करते। और सेकंड स्टेटमेंट ये है कि अगर आप उन चीजों पे खर्चा करते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, कुछ समय बाद आपको वो बेचना पड़ेगा जिसकी आपको जरूरत है. वेलकम टू मनी मैनेजमेंट. Yes or no? This is how you create impact in your life, sir. There is no problem spending, sir. आपका चादर आगे क्या कहते हैं? जितना चादर उतना ही पैर फैलाओ. Yes or no? बुजुर्ग ने ये बोला है ना सर. आज का यूथ क्या बोल रहा है पता है? आज का यूथ बोल रहा है पापा सोऊंगा तो मैं आराम से पड़ोसी का चादर ले आऊंगा. Yes or no? EMI पड़ोसी का चादर है. EMI is the पड़ोसी चादर sir. That is what is happening, sir. The world is getting into a perspective जहां पर लोगों के सोचने का तरीका बदल गया है. आगे कोई मारवाड़ी दुकान में जाएंगे ना, वहां पर क्या लिखा होता है पता है? आज नगद कल उधार. आज जाइए दुकान के बाहर क्या लिखा होता है? बाय नाउ पे लेटर. Yes or no? The world has moved from आज नगद to कल उधार to buy now pay later. That's what is happening. सर आज के डेट में हस्बैंड अपना वाइफ को एनिवर्सरी घर पे विश नहीं करता है.
कहाँ विश करता है पता है? फेसबुक पे। क्यों पता है? क्योंकि उसके फ्रेंड के हस्बैंड ने विश किया था। अब ये बोलता है तुम भी अगर मेरे से सच्चा प्यार करते हो तो मेरे को विश करो। अबे बेचारे के पास ऑप्शन नहीं है। फिर ये रात को 12 बजे लिखता है माई डियर ज्योति। पहला लाइन क्या होता है? माई डियर ज्योति, यू आर द कैंडल ऑफ माई आईज। सबसे मजे का बात क्या पता सर? यही ज्योति सुबह ज्वाला बन के घूम रहा था। ये सर कोई प्यार नहीं कर रहा है। ये जो फेसबुक में आप देख रहे हैं ना, नाटक है, कुछ भी नहीं है। जिनका 25वां शादी का सालगिरह उनको पूछो, अभी छोड़ने का मौका मिला अभी छोड़ दे। सर ऑप्शन नहीं है सर, अभी ईएमआई चल रहा है, ईएमआई खत्म ही नहीं हो रहा है। सर डोंट ट्राई टू कम्पीट, दैट्स अ मिथ दैट यू आर गेटिंग इनटू। सर अभी मैं महाकुंभ गया हुआ था मेरे दोस्त के साथ। मेरे को क्या बोलता है, भाई मैं डुबकी लेने जा रहा है तो मेरा रिकॉर्डिंग करना है। तो मैंने बोला ठीक है। वो गया डुबकी लेने, मैंने रिकॉर्डिंग किया, वापस आया, सर पे से हाथ डालता है, बोलता है भाई इतना हल्का लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि पूरा बॉडी का जितना वजन था ना सब पूरा खाली हो गया, माइंड पूरा फ्रेश हो गया। मैंने बोला भाई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, बोला फिर से जाके आता। तो उसको सर जाना है इसके लिए, उसको पाप धोने नहीं, उसको फेसबुक पे डालना है। Yes or no? That is important. What I'm saying is don't try to benchmark against the wrong parameters. You'll get into a mess. मैडम आज के डेट में शादी में जाने वाला बहादुर है कि बुलाने वाला? सोच के आंसर दीजिएगा, जाने वाला कि बुलाने वाला? मैंने परसों कलकत्ता में पूछा कि शादी में जाने वाला बहादुर है कि बुलाने वाला, तो दीदी वो क्या बोलते हैं पता है? करने वाला। जब से वो ब्लू कलर का ड्रम देख लिया है ना, अब लग रहा है कि करें कि नहीं करें। अभी कोई शिलोंग नहीं जा रहा है सर, शिलोंग का सबका कैंसिल हो गया है। बोला शिलोंग में लाइफ शॉर्ट हो जाता है, स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग कर सकते हो, यहाँ पर लाइफ शॉर्ट हो जाता है। ये सर नो, दैट इज इंपॉर्टेंट। सर आज के डेट में मैडम शादी में जाने वाला बहादुर है, बुलाने वाला नहीं। एक घर का शादी में 6 फंक्शन, यस नॉर्मली इट इज एवरीवेयर, हल्दी मेहंदी बारात संगीत एंड ऑल। सर द प्रॉब्लम इज नॉट विद द फंक्शन, फंक्शन इज लास्ट 1000 ईयर। द प्रॉब्लम इज विद द ड्रेस कोड। हल्दी में पीला पहनो, रिसेप्शन में नीला पहनो और पूल पार्टी में गीला पहनो। ये सुनो, नीला पीला और गीला। और एक ऐड आ रहा है तैयार होके आइए। सर तैयार होना मतलब आपको बनना पड़ेगा मान्यवर। मान्यवर 6500 रुपया, मान्यवर इज 6500। और बाजू में कौन खड़ी है? मोहे। मोहे 9000, टोटल कितना हो गया? 15000। और घर में छोटा छोटा मान्यवर भी है। एक सिंगल फंक्शन का खर्चा है 15000 प्लस अदर स्टफ, और मल्टीप्लाइड बाय 6 करें तो 1.5 लाख का कपड़ा आ जाता है सर। आज के डेट में मैडम घर का शादी में 1 से 1.5 लाख का सिर्फ कपड़ा आ रहा है, सर नो। एंड द वर्स्ट पार्ट इज यू कांट रिपीट द सेम कपड़ा फॉर द नेक्स्ट वेडिंग। क्यों बताइए? रात को फेसबुक में डालना है, सर नो। एंड वो तो रिपीट करे ना थी, मैं तो अंबानी की छोटी बहन हूँ, ये सर नो। और सर भगवान ने ना लेडीज लोग को अलग ही वरदान दिया है। अगर कोई दूसरा लेडीज सर के फोटो लगाता है ना स्टेटस में, ये लोग जूम करके देखते हैं कान का क्या पहना है, हाथ का क्या पहना है। ये सर ये वाला माइक्रोस्कोप नासा खोज रहा है, ये माइक्रोस्कोप आता कहां से? दैट इज द प्रॉब्लम सर। प्रॉब्लम समझा है? दिस इज द प्रॉब्लम। हेल्थ इज द कॉस्ट। हेल्थ विल बी द बिगेस्ट कॉस्ट गोइंग एट सर। द काइंड ऑफ फूड यू हैव, द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू हैव सर, जितना गांठिया फाफड़ा थेपला मुठिया लोचो लोची गार्लिक लोचो जो भी जा रहा है ना सर, हेल्थ विल बी अ कंसर्न। इफ यू डोंट वर्कआउट, कैलोरी इन कैलोरी आउट नहीं होगा, दैट विल गेट इनटू हेल्थ प्रॉब्लम, सीरियस एजेंडा। सर अभी मैं इंदौर में था एक इवेंट के लिए, द एमडी वाज सपोज्ड टू कम। तो मैंने उनके पीए को पूछा कि एमडी क्यों नहीं आए? वो कहते हैं एमडी का राइट अंगूठा, ये जो राइट थंब है ना, सुन हो गया है। सुन मतलब सेंसलेस, मतलब काम नहीं कर रहा है। एंड इज गॉन टू अपोलो, और इसको ठीक करने का खर्चा है 6 लाख रुपए। कितना खर्चा है? अगर भरत भाई अगर अंगूठा सुन हो जाए इसको ठीक करने का खर्चा कितना है? 6 लाख रुपए। सर आप सभी बार अंगूठा घुमाइए, एवरीवन राइट अंगूठा घूम रहे हैं ना, 6 लाख का खर्चा बच गया। ये सब ये नहीं घूमे तो 6 लाख रुपए का है सर। इसीलिए कहते हैं योर बॉडी इज योर ऑडी, योर बॉडी इज योर ऑडी। सर ये जो पूरा स्पेयर पार्ट है ना 2 करोड़ का है विदाउट जीएसटी। मैडम ये अगर एक पीस काम नहीं कर रहा ना सर, कल्पेश भाई 25 लाख विदाउट जीएसटी। यस और नो? ये पूरा स्पेयर पार्ट 2 करोड़ प्लस है। एंड टेक केयर ऑफ इट सर। योर बॉडी इज योर ऑडी सर। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, मैंने बोला वेल्थ इज अबाउट मनी इन लाइफ। सर जो आदमी फिट नहीं है, वेल्थ भंगामा करेगा क्या? आप 100 करोड़ के आदमी हो, आईसीयू में एडमिट हो, क्या करेंगे 100 करोड़ का? ये सर नो, आप 100 करोड़ के आदमी हो, फिट नहीं हो, आप कौन सा भी ब्रांडेड कपड़ा पहनो, आप पे मैच नहीं करेगा। इट इज नॉट अबाउट व्हाट मनी यू हैव सर। आपका बॉडी खुद ब्रांड होना चाहिए, कपड़ा ब्रांडेड नहीं हो तो चलेगा। ये सर नो। एंड अनब्रांडेड बॉडी विल नेवर एडजस्ट इनटू अ ब्रांडेड क्लोथ। अगर आदमी का बॉडी अनब्रांडेड है ना सर, वो कोई भी ब्रांड पहने मजा
नहीं आएगा सर. दिस इज an important reality of life and this is what we talk. Health is the cost. Health will be a cost. Please address it. This is a very serious concern sir. Food habit में get into this. Responsibility and tax. सर ये 5 खर्चों को हम एड्रेस कर रहे हैं, राइट? तो लेट्स गेट इनटू लास्ट पार्ट. 5 मिनट में रैप अप करेंगे विद सम क्वेश्चन आंसर. पहला सवाल, पैसा चाहिए, यस और नो? सर पैसा चाहिए, यस और नो? एनी डिबेट? नो क्वेश्चन. इंडिया में पैसा बनेगा? एनी क्वेश्चन ऑन इंडिया? यू बिलीव देयर इज अ ग्रेट स्टोरी? वंडरफुल, ग्रेट. थर्ड पार्ट, हमारा खर्चा 5 कारण, महंगाई, लाइफस्टाइल, हेल्थ, टैक्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. इसको हमको एड्रेस करना है. योर सैलरी इज नॉट इनकम, योर सेविंग इनकम. और जो कहता है जो होगा देखा जाएगा, बाद में क्या बोलेगा? जो हो रहा है देखा नहीं जा रहा है. एक शायर कहते हैं, वक्त बर्बाद करने वाले को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा. वक्त बर्बाद करने वाले को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा. जो अपने आप को हालात के भरोसे छोड़ेगा, हालात उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा. Yes or no? You have to plan. You have to live the life by design, not by default. Life should be lived with design, sir. You have to design your life, not by default, sir. Design नहीं करेंगे. बाकी सर कल मर गया, उससे डिफरेंट टॉपिक. There are people who कल मर गया तो प्रॉब्लम ही नहीं. सर जो आदमी बोलते हैं ना, सर अभी मेरे को एक बंदा क्या बोलता है पता है? सर मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा है, आने वाले 6 महीने में ना वर्ल्ड में रिसेशन आने वाला है. क्या पढ़ा है रिपोर्ट? कि आने वाले 6 महीने वर्ल्ड में क्या आने वाला है? रिसेशन आने वाला है. तो मैंने बोला देखो सर आपने पढ़ा है तो सही पढ़ा होगा, अगर आप बोल ही रहे हैं तो पढ़ा होगा गलत. तो मैंने उसको पूछा कि सर अभी आप कौन सा गाड़ी चलाते हैं? तो बोलता है सर मेरा तो वैगनआर है. मैंने बोला सर आपका तो बाय डिफॉल्ट रिसेशन चल रहा है, आपका रिसेशन क्या आएगा? ये सर नो, अभी आप 1000 करोड़ के आदमी हो, BMW चल रहा तो आपका रिसेशन आए. जो आदमी तेजी में वैगनआर चला रहा है उसका लाइफ में रिसेशन क्या है? एक बंदा कह रहा है सर अभी जो वार हो रहा है ना, अभी देखना बहुत जल्दी वर्ल्ड वार होगा. और कौन सा वार होगा? न्यूक्लियर वार. और जब न्यूक्लियर वार होगा द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड. आप देख लेना सर बहुत जल्दी होने वाला है, लिखा गया है पुराण में इधर उधर. तो मैंने बोला सर हो सकता है, अगर आप बोले हैं तो कुछ ना हो सकता है. मैंने बोला तो प्रॉब्लम ही नहीं है सर, वार हुआ पूरा दुनिया खत्म हो गया तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही नहीं है. मैंने बोला वार नहीं हुआ और तुम जिंदा रह गया और गरीब रह गया तो ज्यादा प्रॉब्लम है. सर नो, तुम्हारा पड़ोसी का लंबा कार आ जाएगा ना, तुम जल के मर जाएगा, तुमको जलाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा. सर द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ डाइंग सर, द प्रॉब्लम इज ऑफ लिविंग. दिस वर्ल्ड इज प्रॉब्लम इज नॉट डाइंग सर. मर जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है सर? जीने का तो प्रॉब्लम है ना सर. द प्रॉब्लम इज ऑफ लिविंग सर, द प्रॉब्लम इज नॉट ऑफ डाइंग. रिमेंबर दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम सर. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉन्जिविटी. लॉन्जिविटी मतलब क्या है पता सर? आपका लॉन्जिविटी के साथ पैसा होना जरूरी है. मनी प्लस लॉन्जिविटी इज कॉल्ड लॉन्जिविटी. If you have longevity without money, life become dangerous. Money plus longevity is blessing. Longevity without money is सबसे बड़ा problematic station होगा सर. That is where life will get into a mess. You become a liability. That's what the problem is, right? So that is what we talk about concept. Let's 5 मिनट में wrap up करते हैं. Solution. Problem समझ में आया कि problem क्या address कर रहे हैं? Solution. सर अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, आपका गुड नेम सर? नवीन भाई, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने घर के कबर्ड में रखा है, उसका वैल्यू 1 साल बाद कितना हो जाएगा? ओके सर कह रहे नवीन भाई कि 93, 94 ये बरोबर है. मैंने गोवा में पूछा कि सर आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने घर के कबर्ड में रखा है, उसकी वैल्यू 1 साल बाद कितनी हो जाएगी? वो रिप्लाई करते हैं 0. मैंने बोला सर 1 लाख रुपया घर पे 0 कैसे हो जाएगा? बोलता मैडम ले जाता है. तो मैंने बोला कि सर आपका ये फैमिली प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर पाएगा सर, इस पे आप कवर बंद करो. 1 लाख रुपए का वैल्यू 1 साल बाद हो जाएगा 93,000. एब्सोल्यूट राइट सर. अब घर पे रखेंगे तो टूटेगा. ऑप्शन क्या है? डिपॉजिट करेंगे. सर अभी डिपॉजिट में ब्याज कितना मिलता है? 6-7% के आसपास. दिस इज व्हाट द इंटरेस्ट वी गेट. 6 to 7% डिपेंड अपॉन बैंक एंड टेन्योर ऑफ द इन्वेस्टमेंट. और हमको ये पता है कि व्हाटएवर द इंटरेस्ट वी गेट इज टैक्सेबल एज पर इनकम स्लैब. दिस इज व्हाट द अकाउंटिंग रूल सेज. तो सर अगर आपको 6-6.5% ब्याज मिल रहा है एंड यू आर इनटू 20 or 30% ब्रैकेट, यू लैंड अप एट व्हाट? 4.5 to 5%. पोस्ट टैक्स इट इज 4.5 to 5%. एंड देयर इज अ फार्मूला इन मैथमेटिक्स 72/R. 72 divided by 4.5 or 4.8 whatever it is approximately 15 years. सर आज के डेट में भरत भाई आपका 1 लाख रुपया पोस्ट टैक्स to become 2 lakhs, it will take 15 years. Do this mathematics at home. 1 lakh will become 2 lakhs after 15 years. और वहीं पर अगर आपका खर्चा
कल्पेश भाई अगर अभी 10,000 है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? मिनिमम 20,000। खर्चा will double in 5 years, money is doubling in 15 years. What you are losing is minus 10 years. जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि इंडिया में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा, आंसर इज नो सर. The people who are financially literate are becoming rich and the people who are financially illiterate are becoming poor. सर ये टॉपिक फाइनेंशियल लिटरेसी का है या अमीरी गरीबी का टॉपिक ही नहीं सर. रिमेंबर दिस. आप जो गरीबी अमीरी लाते हो ना, जैसे रॉन्ग टॉपिक. इट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी सर. मेरा पैसा 15 साल में डबल और खर्चा 5 साल में डबल, ये 10 साल का गैप में मैं तो ऐसे वापस 10 साल बाद और गरीब हो जाएगा. लोग ज्ञान देते हैं धनंजय भाई सूरत में ना अभी आप फ्लैट को हाथ नहीं लगा सकते हो. अरे भाई आप नहीं लगा रहे, कोई ना कोई तो लगा रहे हैं. ये सुन नो, आप नहीं लगा रहे, मैं नहीं लगा रहा, कोई ना कोई तो दाना लगाएगा होगा ना सर. आप बोलो मैं नहीं लगा रहा सर, घर पे हर फ्लैट लोग लगा रहे हैं, तभी तो 2 करोड़ का आदमी बिक रहा है. लोग ज्ञान देते हैं धनंजय भाई पिछले 15 साल में महंगाई बढ़ गया है. मैंने बोला क्या बढ़ गया है? बोला सिलेंडर का रेट बढ़ गया है, ये इसका रेट बढ़ गया है, चेयर का रेट बढ़ गया है, इसका रेट बढ़ गया है. मैंने बोला सर सिलेंडर जिंदा नहीं है, उसने अपना रेट बढ़ा दिया है. कुर्सी जिंदा नहीं, उसने अपना रेट बढ़ा दिया है. तुम जिंदा है, तुम्हारा रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये सर नो. जो आदमी जिंदा है उसका रेट नहीं बढ़ रहा है, जो चीज जिंदा नहीं उसका रेट कैसे बढ़ रहा है सर? यू हैव नॉट वर्कड ऑन योरसेल्फ. तुमने अपने पे काम नहीं किया इसलिए तुम्हारा रेट नहीं बढ़ रहा है सर. जब सिलेंडर का रेट बढ़ सकता है, आप तो इंसान है, आपका रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये सर नो. व्हाट आई एम सेइंग दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. शाम को 5 बिजनेसमैन आके सरकार के बारे में, पॉलिसी बारे में ज्ञान चालू कर देते हैं. ऐसे कैसे चलेगा? अरे भाई तेरे को नहीं समझता है तो कुछ और कर. Yes or no, sir? If you don't like business, stop the business and try to do something else. You can't meet at 5 p.m. in a टपरी and discuss about what is the problem with government. आप देखो सर हर दिन 5 बजे ना चाय का टपरी में आदमी ज्ञान देगा. ये क्या प्राइम मिनिस्टर है? ये क्या चीफ मिनिस्टर है? ये क्या फिनेंस मिनिस्टर है? और चाय वाला ऐसे सुनता है जैसे प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन है. ये सर आप उसके सामने बात कर रहे हो. भाई तेरे को अगर नहीं है, तेरे को तो इलेक्शन लड़, तेरे को वोट देंगे. अगर आपको प्राइम मिनिस्टर समझ में आता है तो आप इलेक्शन लड़ो, मैं आपको वोट देगा. करना नहीं है, ज्ञान देना है सर. इंडिया में ज्ञानचंद है, रायचंद है, हुकुमचंद है. एक ही चंद मिसिंग है, करमचंद. ये सर ना, यू बिकम करमचंद, यू बिकम बेटर. सर दिस इज द प्रॉब्लम वी एड्रेस. सर आई गिव यू वन फॉर्मूला सर. ये आप रट्टा मान लीजिए, मेरा वादा है आपका आने वाला 100 पीढ़ी भी गरीब नहीं होगा. दिस इज ओनली फॉर्मूला यू शुड अंडरस्टैंड विद मनी मैनेजमेंट. आपका पैसा उतनी तेजी से बढ़ना चाहिए जितनी तेजी से आपका देश बढ़ रहा है. अगर आपने इतना कर लिया, यू विल नेवर बिकम पोर इन एनी कंट्री. आप चाहे आप इंडिया में रहें या यूएस में रहें, इफ योर मनी ग्रोज एट द सेम रेट एट विच योर कंट्री इज ग्रोइंग, यू विल नेवर बिकम पोर इन दिस कंट्री. और आप जिस देश में रह रहे हैं, इसका पिछले 45 साल का ग्रोथ रेट है 13 से 14%. चेक ऑन नेट. द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द लास्ट 45 years, 45 के एवरेज निकालेंगे ना, तो द ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज 13 to 14%. हाउ डू वी कैलकुलेट? जीडीपी 6-7%, इन्फ्लेशन 6-7%, ऐड करें उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी. The growth of the country is the nominal GDP of the country. So if your money doesn't grow at that rate, you become poor in this country, sir. And that is what the formula is. सर आप लोग यहाँ पर बहुत जन सीनियर भी हैं सर. आप यहाँ सीनियर हैं सर, आप भी यहाँ पर सीनियर हैं. मैडम आज से 20 साल पहले ऐसा इवेंट होता था? आज से 20 साल पहले सर ऐसा इवेंट, काका ऐसा इवेंट होता था? नहीं होता था ना. क्यों नहीं होता था पता है? जरूरत नहीं था. क्योंकि आज से 20-25 साल पहले आपका पैसा 5-5 साल में डबल होता था. ये सर नो. 12-13% ब्याज नहीं मिलता था. केवीपी, एनएससी 5-5 साल 6 साल डबल नहीं होता था. होता था ना. ये सर नो. सर बैंक एफडी नहीं देता 13% आपको. सर आगे देश का ग्रोथ 13-14, ब्याज 13-14, नो टेंशन. राइट नाउ ग्रोथ 13-14, ब्याज 4.5, देयर इज अ टेंशन. समझ आया सर? आप बोल रहे हैं क्यों बात कर रहे हैं? द रीजन व्हाई वी आर टॉकिंग टुडे इज द इंटरेस्ट रेट इज नॉट सेम दैट वाज बिफोर 25 years. दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव दिस सेशन. अदरवाइज मेरा यहाँ पर आने जरूरत नहीं था. अगर एफडी 13% चलता ना, ये सेमिनार वाज इररिलेवेंट. Yes, so remember this. If the interest was 13%, all these seminars are waste of time. Because there is a change in interest and there is a change in cost. कॉस्ट हमारा चेंज हो गया है. और यहाँ पर ये चेंज अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे आज, 10 साल बाद यही चैलेंज हो जाएगा सर. इफ यू डोंट टेक एड्रेस, बिकॉज सर एक थ्योरी कहता है यू कांट चेंज योर फ्यूचर इन फ्यूचर. अगेन आई रिपीट, यू कैन चेंज योर फ्यूचर इन प्रेजेंट सर. यू कांट चेंज योर फ्यूचर इन फ्यूचर सर. आप प्रेजेंट में फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाएंगे. तो अगर आपको कंट्री के हिसाब से ग्रो करना है, लास्ट 2 मिनट में खत्म करेंगे, कंट्री के हिसाब से ग्रो करना है तो 2 ही चीज है सर. पहला आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा नहीं बनेगा. आप मेरे को क्या, आप किसी को खड़ा कर दीजिए सर. यू कैन हैव द बेस्ट फंड मैनेजर, किसको खड़ा करो, इररिलेवेंट.
अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो पैसा नहीं बनेगा सर। और जब मैं लोगों को कहता हूँ इन्वेस्टमेंट करो, लोग क्या बोलते हैं, धनंजय भाई इन्वेस्टमेंट तो करवानु छे पर इन्वेस्टमेंट में रिस्क छे एंड गारंटी नहीं। दैट्स द टू कंसर्न पीपल हैव। ये फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट में रिस्क छे कल्पेश भाई, और सेकंड क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट में गारंटी नहीं। सर ये दो को समझ जाइए, विद दिस विल एंड द सेशन। रिस्क का मतलब क्या होता है सर? रिस्क का मतलब इज वेरी सिंपल। रिस्क का मतलब होता है नुकसान, लॉस, पैसा डूब जाना। ये सर नो, फिर से रिपीट, रिस्क का मतलब इज नुकसान, लॉस, पैसा डूब जाना। ये सर नो, आंसर इज नो। सर द टेक्निकल मीनिंग ऑफ रिस्क इज अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। रिस्क इज नॉट लॉस, रिस्क इज अनसर्टेनिटी। 90% लोग गरीब क्यों पता है, उनका डेफिनेशन ऑफ रिस्क गलत है। सर रास्ते में चलना रिस्क है भरत भाई, रास्ता क्रॉस करना सर, राइट, बाइक चलाना, कार चलाना, सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी से उतरना, अपने 5 साल के बच्चे को बस में स्कूल भेजना, शादी करना। सर जो वाइफ के साथ है बोला हमको मत पूछो, रिस्क बाजू में बैठा है। ये सर ना, रिस्क इज नॉट लॉस, रिस्क इज अनसर्टेन। आई गिव माय एग्जांपल। सर कल सुबह में भुवनेश्वर था, कल मैं भावनगर, परसों कैलकाटा, फिर भुवनेश्वर, उसके नेक्स्ट दिन गोवा। आई ट्रैवल फॉर 300 days 24 states। अब सर मैं कोई बात बताओ, रात को ट्रेन से भावनगर जाना रिस्क है कि नहीं है? बरोबर। और वहां से कल कैलकाटा जाना रिस्क है। अब मेरा सवाल है सर, मैं घर से बाहर निकला, रिस्क लिया, तो मेरे घर पे पैसा आया? सिंपल, यस और नो। यानी एक चीज तो क्लियर है, आई डन माई PhD, CFP, MBA, CM सब कुछ किया है, फिर भी मेरे को घर से बाहर निकलना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, ताकि घर पे पैसा आता है। माई क्वेश्चन इज, इफ यू कांट अर्न मनी विदाउट टेकिंग रिस्क, देन हाउ विल योर मनी अर्न मनी विदाउट टेकिंग रिस्क? भैया अगर आप जॉब करते हैं, ड्यूटी में जाना रिस्क है और वापस आना रिस्क है। महीने भर जाते आते तो 1 तारीख को पगार आता है, यानी बिना रिस्क के आप पगार भी नहीं कमा पाएंगे। सर अगर आप बिजनेसमैन है, आपको प्रॉफिट कब होता है? जब आप रिस्क लेते हैं, यानी विदाउट टेकिंग रिस्क यू कांट मेक प्रॉफिट आल्सो। माय क्वेश्चन इज, इफ यू कांट मेक मनी विदाउट टेकिंग रिस्क, हाउ विल योर मनी मेक मनी विदाउट टेकिंग रिस्क? पैसा जब घर से बाहर निकलेगा, रिस्क लेगा, तभी तो लाके देगा। यस और नो? तो वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ वेल्थ क्रिएशन इज इंटेलिजेंस प्लस रिस्क इज वेल्थ क्रिएशन। Again I repeat sir, the formula of wealth creation is simple, intelligence plus risk is wealth creation। अगर आप इंटेलिजेंट हैं और आप रिस्क लेंगे तो पैसा बनेगा। एंड द सेकेंड फॉर्मूला इज इंटेलिजेंस प्लस इंटेलिजेंस इज फेलियर। अगेन आई रिपीट सर, इंटेलिजेंस प्लस रिस्क इज वेल्थ क्रिएशन, इंटेलिजेंस प्लस इंटेलिजेंस इज फेलियर। अगर आप यूपी में जाएंगे ना सर, यूपी में वहां बस के पीछे क्या लिखा होता है पता है सर? यूपी में बस के पीछे लिखा होता है, गरीब आदमी समझदार होता है। क्या लिखा होता है? गरीब आदमी समझदार होता है। उल्टा कीजिए, समझदार लोग पैसा नहीं कमाते हैं सर। जिसका मुंह से अगर मगर तो ज्यादा चलता है ना, पैसा नहीं कमाएगा, ना ही पैसा कमाएगा, ना ही लाइफ में सुखी रहेगा। सर एक बेस्ट इन्वेस्टर कौन है पता है? जिसको लगता है उसका आने वाला कल आज से बेहतर है। जिस आदमी को इस हॉल में आने वाला कल आज से बेहतर नहीं लग रहा है, यू विल नेवर बिकम अ ग्रेट इन्वेस्टर। सर आप 28 पेज का न्यूज़पेपर पढ़िएगा, 28 में 26 पेज कचरा होता है। यस और नो? सर इफ यू रीड a 28 पेज न्यूज़पेपर, 26 पेजेस ऑल idiotic stuff, it doesn't add any value। और कुछ लोग कसम खा के बैठते हैं, जब तक बाहर का कचरा अंदर नहीं लेते हैं ना, उनका अंदर का कचरा बाहर नहीं आता है। यस और नो? दैट्स द प्रॉब्लम। वो जो 100 मिनट में 100 खबर आता है, 90% ऑफ idiotic news which doesn't add any value। जिस आदमी ने 26 पेज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया है और 100 मिनट में 90 खबर लिख लिया है, उसको आप बोल रहे हैं वेल्थ क्रिएट करो। डू यू थिंक इज द आइडियल कैंडिडेट फॉर वेल्थ क्रिएशन? आंसर इज नो। इज किलिंग हिज टाइम। यस और नो? वी नीड पीपल सर। द पेसिमिस्ट सर, आज के टॉपिक में आई कैन टॉक अबाउट यूक्रेन, आई कैन टॉक अबाउट क्रूड, आई कैन टॉक अबाउट रसिया। इससे आपका लाइफ में ज्यादा फर्क करने वाला नहीं है। इन्वेस्टमेंट में याद रखिएगा सर, इन्वेस्टमेंट में आज क्या हो रहा है इससे ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट में आज से 10 साल बाद क्या हो, इससे फर्क पड़ेगा सर। इन्वेस्टिंग इज डिस्काउंटिंग फ्यूचर। सर आज 2035 में यूएस में प्रेसिडेंट कौन रहेगा, ये आपको फर्क पड़ेगा। अभी प्रेसिडेंट कौन है, ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा। जिस समय आपको पैसे का जरूरत पड़ेगा, उस समय कौन होगा, उससे फर्क पड़ेगा सर। जिस समय अभी डाल रहे हैं पैसा, उस समय कौन, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सर। योर मैच्योरिटी इज 2035। जिसका मैच्योरिटी 2035 है सर, 2025 में उसको क्या फर्क पड़ जाएगा सर? 2035 में जो प्रेसिडेंट रहेगा उसका पॉलिसीज आपको फर्क पड़ेगा सर। अभी का पॉलिसी फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टिंग इज डिस्काउंटिंग फ्यूचर, दैट इज व्हाट यू एड्रेस।
एंड द लास्ट पॉइंट फॉर द डे 2 मिनट्स गारंटी लोग बोलते ठीक है धनंजय भाई रिस्क लेवानो चाहिए गारंटी नहीं तो जब लोग गारंटी का बात करते हैं मैं एक ही चीज बोलता हूँ सर गारंटी तो हमारा खुद का 1 घंटे का नहीं है भरत भाई 1 घंटे बाद आप और मैं जिंदा रहेगा गारंटी है तो फिर काम क्यों कर रहे हैं ताकि किसी के सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं पड़े ये सुनो दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट सर आप जो हवाई यात्रा करते हैं पायलट गारंटी देता है नहीं देता ना मैडम क्या बोलती है कुर्सी का पेटी बांध दो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ से कूदने का ये सब नो अब जो 2 मिनट का टर्बुलेंस आता है सबको नॉमिनी का नाम याद आता है कि नहीं आता है सब मिल जाता है डोंट हैव ऑप्शन सर अहमदाबाद में एयर इंडिया का फ्लाइट क्रैश हुआ था यस उसके बाद आपने फ्लाइट लिया कि नहीं लिया था ना सर आपने क्यों लिया पता है आपको ट्रस्ट है सर जो आदमी ट्रस्ट नहीं करता है ना जहां पर टी हट जाता है क्या बचता है रस्ट उसको हिंदी में बोलते हैं नष्ट हिंदी में बोलते हैं नष्ट जो आदमी ट्रस्ट नहीं करेगा लाइफ में रस्ट लग जाएगा और रस्ट होने से लाइफ यू डोंट हैव एन ऑप्शन सर मेडिकल साइंस के हिसाब से हर दिन भारत में अराउंड 30,000 लोगों का डेथ होता है सर कितने लोगों का एवरी डे इन इंडिया 30,000 पीपल डाई सर एवरी डे भैया फिर भी रात को अलार्म लगाते हैं ना क्यों लगाते हैं आपको पता है मैं तो उठेगा ये सर ऐसे नहीं कि धनंजय भाई ने बोला है तो कल मेरा लॉटरी निकलने वाला है ऐसा नहीं है आपके पास चॉइस नहीं सर यू हैव टू बिलीव देयर इज अ बेटर टुमारो सर आपको जब डॉक्टर ओटी मिलेगा तो डॉक्टर क्या बोलते हैं आई विल ट्राई माय बेस्ट इट डजंट गिव यू गारंटी सर इट इज ऑल प्रोबेबिलिटी सर आपका 25 साल का लड़का बुढ़ापे में ध्यान रखेगा इसका भी गारंटी तो मांग किसे है You have to trust. You don't have a choice, sir. You don't have actually choice. You are choiceless. Technically, as an investor, you have to assume that. तो 3 गुरु मंत्र पहला गुरु मंत्र इन्वेस्ट विद अ गोल अगर पैसा बनाना है 1 more zero ऐड करना है इन्वेस्ट विद अ गोल और इंडिया में दिक्कत क्या है पता है सर सबका गोल है सबका गोल एक होता है हिंदी वाला गोल एक होता है इंग्लिश वाला गोल हिंदी वाला गोल इज GOOL इंग्लिश वाला है GOAL सर दैट A स्टैंड फॉर एडवाइजर सर आपका एडवाइजर आपका गोल को गोल बना देता है विदाउट एडवाइजर यू कांट डू दिस सर अभी मैं टीवी शो में एक इन्वेस्टर क्या बोलता है धनंजय भाई आज से 1 साल पहले मैंने म्यूचुअल फंड में 10 लाख डाला था आज 9 लाख रुपया हो गया क्या करना चाहिए कितना डाला था 10 लाख आज कितना हो गया 9 लाख तो मैंने बोला सर अगर ये 10 लाख 11 लाख होता तो आप क्या करते बोलता है कुछ नहीं मैंने बोला आपको वही करने का है ये सर आप जो बोला ना आपको तो वही करने का मैंने बोला आपने डाला 10 लाख टाइम फ्रेम का 10 साल टारगेट है 30-40 लाख रुपए तो अभी 1 साल में 1 लाख बढ़ गया गिर गया हाउ डज इट मैटर सर योर गोल इज 30-40 लाख हाउ डज इट मैटर्स सर आप में कोई बात बताओ पनीर का रेट ज्यादा होता है कि पनीर टिक्का का ज्यादा रेट किसका होता है पनीर की पनीर टिक्का का ये सर नो इससे आपने क्या सीखा जो टिकेगा उसका रेट बढ़ेगा ये सब आप लोग के साथ दिक्कत है आप लोग ठीक नहीं रहे हर 2 दिन में सू लागे जा रहे सू लागे हर दिन ऐप खोल के संडे के दिन लोग ऐप चेक करते हैं कि एनवी चाहिए अरे संडे को मार्केट बंद रहता है संडे को ऐप खोलने का जरूरत नहीं है वी डोंट वॉच मार्केट ऑन संडेज हाउ डू यू क्रिएट वेल्थ ऑन संडेज सर अगर आपने ट्रेन लिया है सूरत से चेन्नई का लगेज कब निकालेंगे चेन्नई पहुंचने के बाद ये सब नो हम क्या कर रहे हैं पता हर स्टेशन पर लगेज निकाल रहे हैं चेन्नई अभी क्यों चेन्नई अरे तू शांति से सो चेन्नई आएगा तेरे को उठाएंगे तो डेली जग जाता है सू लागे अरे सू लागे इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट सेकंड इज व्हाट विद एडवाइजर सर भगवान कृष्णा ने अर्जुन को गीता का ज्ञान युद्ध के पहले दे दिया था यस और नो और वो ज्ञान दे के द्वारका भी जा सकते थे वहां पर रुक क्यों गए उनको पता है ज्ञान देने के बाद भी गलती करेगा यस और नो सर इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट नॉलेज सर इन्वेस्टिंग अबाउट टेम्परामेंट इन्वेस्टमेंट में टेम्परामेंट का ज्यादा रोल है नॉलेज का कम रोल है सर आप देखो सर जो इंडिया में स्टार्टअप्स होते हैं मैक्सिमम फेलियर क्यों होते हैं दे कम विद नॉलेज बट लैक टेम्परामेंट इन्वेस्टमेंट में और धंधे में आपको टेम्परामेंट का ज्यादा जरूरत है सर नॉलेज का कम जरूरत है ऑल ग्रेट बिजनेसमैन विल हायर नॉलेजेबल पीपल टू रन देयर बिजनेस ये सुनो नॉलेजेबल आदमी धंधा नहीं करता है सर वो हायर करता है नॉलेजेबल लोगों को उसके पास टेम्परामेंट है जिगरा है पीपल मैनेजमेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल है दैट्स द रीजन व्हाई इज अ बिजनेसमैन And that is the beauty, sir. And last point for the day, 30 seconds. Print media, social media, electronic media. इसको देख के ना ही पैसा डालने का है और ना ही पैसा निकालने का है 1904 में एक लेखक ने कहा था if you don't read newspaper you are uninformed if you don't read newspaper you are uninformed and if you read newspaper you are misinformed yes or no अगर आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको जानकारी नहीं मिल रहा है और पढ़ रहे हैं तो आपको गलत जानकारी मिल रहा है सर कल सुबह मैंने अखबार खरीदा
और जब मुझे अखबार खरीदा ना, मुझे क्या पता चला है, इस अखबार को मेरे से पहले किसने खरीद लिया था। समझ में? इस अखबार को मेरे से पहले किसी ने खरीद लिया था। दैट इज वेयर द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ फेसिंग सर। डोंट ट्राई टू बिकम चौधरी सर। इस मार्केट में चौधरी बनने का जरूरत नहीं है, आपको बनना है चाचा। क्या बनना है? चाचा। तो आप चाचा बन के रहेंगे, द मार्केट विल सेल यू टू सर। डोंट ट्राई टू बिकम चैंपियन सर। द ओनली सीक्रेट ऑफ वेल्थ क्रिएशन इज टाइम। जो आदमी समय देगा पैसा बनाएगा, दैट्स ओनली, देयर इज नो अदर सीक्रेट सर। सर अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है ना, तो मिनिमम 10 साल लगेगा। स्टॉक मार्केट पैसा बनाना कितना साल लगेगा? 10 साल। और सर अगर आपको जल्दी है ना, तो 15 साल लगेगा। जल्दी है तो 15 साल लगेगा। सर एक 9 महीने का बच्चे में आप क्या बदलाव देखते हैं? जब एक बच्चा 9 महीने का होता है, क्या बदलाव देखते हैं? उस बच्चे का दांत आना चालू होता है। ये सुनो मैडम, एक 9 मंथ्स का बच्चे में यू सी अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, द टीथ स्टार्ट कमिंग। यस। और मैडम जब वो बच्चे का दांत आता है, वो चिड़चिड़ा होगा, रोएगा, खाना कम खाएगा। ये सर हैव नोटिस? आई एम श्योर आपने नोटिस किया, राइट? लेकिन सर वो जब दांत आ जाता है ना, उसी दांत से वो जिंदगी भर रोटी खाता है। ये सर इन्वेस्टमेंट भी वैसा ही है सर। जो आदमी 9 साल मार्केट में पैसा लगाता है ना, वो पैसा इंश्योर करता है कि उसी पैसे से वो जिंदगी भर रोटी खाएगा। यस सर नो, एंड दैट इज व्हाट मनी मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट। एंड दिस इज व्हाट यू लर्न एज एन इन्वेस्टर, यू बिकम ग्रेट इन इन्वेस्टिंग, राइट? तो सर आज का सेशन के लिए मुझे इतना ही पैसा मिला था तो मैं इतना ही बात कर पाएगा सर। थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल कनेक्टिंग विद यू सर। थैंक यू। राइट नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सर। क्वेश्चन आंसर के लिए फ्लोर ओपन है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू वांट टू आस्क समथिंग, शेयर समथिंग, वी कैन टेक ऑन द स्टेज सर। अमेजिंग। કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો આગળ આવી જાઓ, ઊભા થઈને બોલો. છે માઇક બી છે. धनेश भाई समझ में आ रहा है कि आपने सबको धन के बारे में सब कुछ संजय दृष्टि दे दी है, ऐसा लग रहा है? सर अगर सवाल नहीं है तो 2 चीज है, या तो सबको समझ में आया है, बट आई बिलीव यू गॉट सम क्लैरिटी। एनी क्वेश्चन वी कैन टेक इट सर। Hello. Thanks for all the suggestions and information. Just a small question: trading or investment? ओके सर देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अपना जगह सही है सर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, ट्रेडिंग में आपको 3 चीज होना चाहिए सर। एक होता है समझ, एक होता है समय, और एक होता है स्वयं। 3 फैक्टर्स। समझ इज नॉलेज, समय इज टाइम, स्वयं इज सेल्फ कंट्रोल। तो व्हेन पीपल टॉक अबाउट स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, दोनों का मॉडस ऑपरेंडी अलग है सर। ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक गोइंग फॉर हंटिंग। ट्रेडिंग जैसे कि आप डेली शिकार पे निकलते हैं। और व्हेन यू टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड, द मॉडल इज फार्मिंग। अब जिसको नॉलेज है सब्जेक्ट को लेके, जो चीज कर रहा है वो वहां पर चैंपियन बन जाएगा। अभी लोग क्या कर रहे हैं, दिक्कत क्या पता है ना, लोग काम कर रहे हैं टिप के ऊपर कि मेरा दोस्त टिप अच्छा देता है। सर एक्चुअली टिप वेटर को देते हैं, इन्वेस्टर को नहीं देते हैं। तो इन्वेस्टर जिस दिन टिप लेने चालू करता है ना, वो वेटर वाला काम कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई डजंट ट्रेड वेल। स्टॉक में अगर आपको एक्चुअली ट्रेडर बनना है सर, माय रिक्वेस्ट इज फर्स्ट लर्न द टॉपिक। देयर आर डिफरेंट कोर्सेज, देयर आर CMT काइंड ऑफ कोर्स, सर्टिफाइड मार्केट टेक्नीशियन, यू लर्न टेक्निकल एनालिसिस, यू लर्न दिस सब्जेक्ट। जहां पर पहले लर्निंग है ना सर, वहाँ L हटा देंगे तो अर्निंग हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल वो कैसे आते हैं ट्रेडिंग में पता है? वो 2000 का कोर्स करके, यूट्यूब में 2000 का कोर्स अटेंड करेंगे, कैंडल स्टिक, हैमर, हैंगिंग मैन, वो सब सीख लेते हैं। उनको लगता है सर ट्रेडिंग में सबको सब कुछ पता है सर। व्हाट पीपल विल लैक इज टेम्परामेंट। जब मार्केट आपके हिसाब से काम नहीं करता है ना, स्टॉप लॉस नीचे आता रहेगा सर। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज सर। आपने 100 में खरीदा, 95 आएगा, आपको क्या लगेगा यहाँ से घूमेगा 92 कर देता हूँ, बिकॉज सर आई हैव सीन दैट पर्टिकुलर थिंग सर। आप सेबी का डेटा देखो ना सर, आप जब लॉग इन करते हैं अपने अकाउंट में, द पीपल हु आर डू ट्रेडिंग सर, दे जनरली लूज मनी सर इफ दे डोंट अंडरस्टैंड द पैटर्न, बट देयर आर पीपल हु आल्सो मेकिंग मनी सर। द डिफरेंस इज नॉलेज। इफ यू आर नॉलेज, you have trained yourself, then it can work for you. Without knowledge, if you come, there's a high probability you will not make money out of this. तो अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, एक लॉन्ग टर्म में गोल्स कुछ बनाने पोर्टफोलियो, देन म्यूचुअल फंड्स अ गुड रूट। देयर आर पीपल हु आर इनटू स्टॉक पिकिंग। अगर आपके पास स्किल है, आप कर सकते हैं।
बट आई एम अ बिग फैन ऑफ पैसिव सर। मेरे को लगता है कि आपको पैसिवली एक एक्टिव इन्वेस्टर बनना है, तभी जाके पैसा बनेगा। अदरवाइज हाफ बिग नॉलेज में यू कांट क्रिएट द वेल्थ दैट यू आर लुकिंग एट, राइट? जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट में भी सबका हार्ट ऊपर नीचे होता है। एब्सोल्युटली सर। सर इन्वेस्टमेंट में पैसा डालने के बाद में हार्ट ऊपर नीचे होगा सर। आप अगर आप मर्सिडीज खरीदेंगे ना सर और बाहर रख के आएंगे ना, तो आपका दिमाग में हमेशा मर्सिडीज में रहेगा, कोई हाथ तो नहीं लगा रहा है। जो चीज़ आप खरीद लेते हैं ना, जिसकी ओनरशिप आ जाती है ना, वहाँ पर हमेशा डर रहेगा सर। आपकी शादी भी हो जाएगी तो भी आपको डर रहेगा। दैट्स द रूल ऑफ इन्वेस्टिंग सर। चाहे लाइफ और इन्वेस्टिंग सर, जहाँ पर ओनरशिप है ना, वहाँ डर होगा सर। माई इंपॉर्टेंट इज डेटा। मैं हमेशा डेटा की बात करता हूँ सर। जिस इन्वेस्टर ने आज से सर, आप कोई भी पॉइंट देख लो सर, जिस इन्वेस्टर ने 2019 से पैसा डाला है, पैसा बना है, आंसर इज यस। 20 में डाला है, पैसा बना है, आंसर इज यस। 21 में डाला है, पैसा बना है, आंसर इज यस। 22 में बना है, 23 में बना है, 24 में बना है। जिसने 25 में डाला है, अभी 6 महीना साल भर मार्केट वो फ्लैट है, तो ऑलमोस्ट इट इज न्यूट्रल सर। इंपॉर्टेंट इज इट इज जस्ट लाइक क्रॉसिंग का ट्रैफिक सिग्नल सर। ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क जो भी होता है ना सर, 6 महीने में सब न्यूट्रलाइज हो जाता है। एवरीथिंग गेट न्यूट्रलाइज ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर। अभी तो हम ये रिस्क की बात कर रहे हैं सर, 1914 से वार हो रहा है सर अक्रॉस ग्लोब। 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, 1939 सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, 2008 में वी हैव दैट सबप्राइम क्राइसिस, 2000 में बबल हुआ, 92 में हर्षद मेहता हुआ, अभी कोविड हुआ सर। ये होने के बाद भी जो इंडेक्स चालू हुआ था 1979 में 100 में, इट इज स्टैंडिंग एट 86,000 सर। ये रिस्क नहीं होगा ना, तो फिर इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं बनेगा सर। ऑल रिटर्न यू गेट बिकॉज देयर इज अ रिस्क। इफ देयर इज नो रिस्क, देयर इज नो रिटर्न सर। तो ये जो रिस्क है, इंटरेस्ट रेट चेंज होगा, पॉलिटिकल होगा, सब होने के बाद में यू क्रिएट अ रिस्क। तो आप कैसे बिहेव करते हैं एज ए इन्वेस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एक इन्वेस्टर को पूछा था कि सर आप यहाँ पैसा डालिए, पैसा बनेगा। तो मेरे को क्या बोलता है, धनंजय भाई मैं इसमें पैसा डालेगा तो कितना रिटर्न मिलेगा? तो मैंने उसको क्या बोला पता है सर, रिटर्न तो आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पिछले 40 साल में जितना रिटर्न मार्केट ने दिया है, क्या उतना रिटर्न इन्वेस्टर ने कमाया है? आंसर इज नो। इन्वेस्टर हमेशा सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि कंट्रोल उसको सेंसेस को करना है। हमारी सेंसेस में प्रॉब्लम है सर, सेंसेस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यू विल गेट सेंसेस बेस्ड रिटर्न सर। तो दिस रिस्क विल ऑलवेज बी देयर सर। सर आज आप इस इवेंट में आए सर, इस इवेंट में आना भी तो एक रिस्क था ना सर। अगर आप इवेंट में अभी जाते समय आप आंख बंद करके गाड़ी चलाए तो क्या होगा? धक्का हो जाएगा सर। जो चीज को मेरे को नहीं समझता है वो मैं करता हूँ, तो वहाँ प्रॉब्लम है। जब आप आंख खोल के हेलमेट पहन के 40 की स्पीड में चलाएंगे तो आप आराम से घर पहुंच जाएंगे। तो रिस्क तो घर जाने में भी है, बट आप क्यों आए हैं? क्योंकि आपको पता है कि मैं जिस तरीके से चलाता हूँ आराम से घर पहुंच जाऊंगा सर। So that risk will always be there. Going from here to home is also a risk. Then we talk about risk in market will always be there, sir. But you have to manage that risk. You take help of advisor and you become better in money management. फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स तो जैसे बढ़ रहा है, होगा सर। फ्यूचर में तो और ज्यादा सर फ्रीक्वेंसी इवेंट आगे बहुत था, पता क्यों चलता? पता आपके पास मोबाइल नहीं था। समझे सर, ये इवेंट ऐसा नहीं कि आज हो रहा है सर। आपका खानदान में ना सर, कोई किसी का डेथ होता है ना, 5 दिन बाद या 1 महीने बाद लेटर आता था कि इस गांव में इसका डेथ हो गया। डेथ तो उसका हो ही गया था। आगे कम्युनिकेशन की स्पीड नहीं थी सर। अभी राइट नाउ कम्युनिकेशन की स्पीड ज्यादा है, तो आपको लग रहा है प्रॉब्लम ज्यादा है। जब कम्युनिकेशन स्पीड कम हो जाएगी आपको लगेगा प्रॉब्लम नहीं है। ये सर ना, तो स्पीड तो बढ़ने वाला है। वही बोला ना, अब इसलिए बोला आपको द ओनली काम इज यू हैव टू डू इज रिमेन काम। इन्वेस्टर का एक ही काम है, KMM क्या काम पता है? यू हैव टू रिमेन काम, CALM। ये न्यूज से आप प्रभावित नहीं होना सर। दैट इज वेयर द रोल ऑफ एडवाइजर इज। अभी इंडिया पाकिस्तान वार होने वाला था, लोगों ने पैसा निकाल लिया। मेरे को क्या वो धनंजय भाई नहीं दिख रहे वार होने वाला है? तो मैंने बोला आपने अपना फैक्ट्री बंद कर दिया। बोलता नहीं मैंने फैक्ट्री बंद नहीं किया। मैंने आपको क्या लगता है बाकी दुनिया का फैक्ट्री बंद हो जाएगा, तुम्हारा तो दुनिया चलता रहेगा। तो when you don't have people who can guide you, who can give you clarity when there are troubles, that is where the problem is. तो आप जो कह रहे हैं ना कि ये न्यूज़ ज़्यादा आएगा, 100% आएगा। ये न्यूज़ इसको बोलते हैं नॉइस। इन नॉइस यू नीड अ वॉइस। जहाँ पर नॉइस ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर आपको वॉइस की तलाश है, और आपका वॉइस आपका एडवाइजर है। दैट एडवाइजर विल गिव यू वॉइस when you are caught in some noise, and that is what money management is all about, right? Thank you. नंबर ऑफ एल्गो ट्रेडर्स इतने ज्यादा हैं, उसके बाद भी कुछ लोग मैनुअल ट्रेडिंग से कमा रहे हैं। करेक्ट। तो उसका क्या रीजन है? सर देखो, मैं बोला ना ट्रेडिंग इज अ सब्जेक्ट, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू लर्न सर। ट्रेडिंग में सिर्फ कौन क्या कमा रहे इससे फर्क नहीं पड़ता है सर। व्हाट इज योर स्किल सेट अबाउट दिस? आप जो ग्राफ को देखते हैं ना सर, 15-20 साल 10 साल आदमी ग्राफ देखता है ना, ग्राफ से वो सेंस कर लेता है मार्केट का मूवमेंट। टेक्नोलॉजी विल कम सर। देयर आर पीपल वांट टू एल्गो ट्रेडिंग सर। मार्केट में 2 चीज होता है सर। एक अभी हम बात कर रहे हैं AI की, आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट सर? याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लॉजिक पे काम करता है। और मार्केट जो है ना, शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट में ज्यादा काम करता है।
सेंटिमेंट का ट्रेनिंग एआई और किसी सॉफ्टवेयर को नहीं होगा सर. सेंटिमेंट इज समथिंग इज ड्रिवन बाय ह्यूमन इमोशन. मैं एक पर्टिकुलर न्यूज़ को कैसे ले रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर. अभी एक कंपनी का रिजल्ट अच्छा आता है, उसका शेयर प्राइस कैसे क्यों गिर जाता है? कोई कंपनी का आपने देखा ना, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, शेयर प्राइस क्यों गिर रहा है? क्योंकि स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशन था कि इससे ज्यादा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए. यस और नो? द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्ट्रीट इज समथिंग डिफरेंट सर. व्हाट आई एम सेइंग इज यू नीड ह्यूमन इंटेलिजेंस टू डिकोड थिंग्स. अगर सब कुछ एल्गो और सिस्टम बेस्ड होता ना तो जितने फंड मैनेजर उनको जरूरत ही नहीं पड़ता. आप पैसा डालिए, सिस्टम को आप स्कैनर लगा दीजिए, उस हिसाब से स्टॉक पिक हो जाएगा. That human intelligence, that behavior part is something that will drive the market, irrespective of what the scenario is. तो आप जो बोल रहे हैं ना manual will come with that experience. Algorithm is an enabler. All technology will be an enabler for trading. It will not be for decision making. It will support in decision making. एक होता है decision making, एक होता है support system. All these are support system for decision making. They are not here to take decision. Decision will be yours, and that's what it is. Right? Yes. वंडरफुल. है कोई बीजा क्वेश्चन? बहुत सच्ची बोलूं धनंजय भाई, मुझे लग रहा था कि ये कब आपका बंद हो. अभी आपका ताज्जुब होता होगा कि इतना अच्छा आप समझा रहे थे. पर मेरी एक हैबिट है, मुझे जो भी कोई पॉइंट अच्छा लगता है ना तो मैं हमेशा नोट करता रहता हूँ. ये पहला लेक्चर है कि मेरा दोनों बाजू का पूरा बंदा मर गया. मतलब एक के बाद इतने कंटिन्यूसली ऐसी चीज आ रही थी कि मैंने सोचा ये पॉइंट तो मिस नहीं करना, ये पॉइंट तो मिस नहीं करना है. तो रियली बहुत मजा आया. और मुझे तो लगता है कि सिर्फ इसका एक मैं बोलूँ तो 1 साल का मेरा इंस्टाग्राम का मेरा पूरा प्रेजेंस क्रिएट हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, ચેમ્બરની કેપિટલ એન્ડ કમોડી માર્કેટના ચેરમેન શ્રી અયુભાઈ યાકુબલીનો રિક્વેસ્ટ કરીશ કે વોટ ઓફ થેન્ક્સની એક ફોર્માલિટી બતાવે પ્લીઝ. થેન્ક યુ રાકેશભાઈ. ધનંજયભાઈને સાંભળીને તો શું છે કે બધા અમારા આજના ઇન્વેસ્ટરો તો આમ ખુશ થઈ ગયા છે. થેન્ક યુ રાકેશભાઈ, મને વોટ ઓફ થેન્ક્સ કહેવા માટે તમે મને આમંત્રિત કર્યો. આજના એડ 1 more zero, યોર નેક્સ્ટ સ્ટેપ ટુવર્ડ અચીવ ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ કાર્યક્રમના સફળ સમાપન પર હું અયુબ યાકુબ અલી, સદન ગુજરાત ચેમ્બર એન્ડ કોમર્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના કેપિટલ એન્ડ કોમોડિટી માર્કેટ કમિટીના ચેરમેન તરીકે આપ સૌનો હાર્દિક આભાર વ્યક્ત કરું છું. આજના આપણા મુખ્ય વક્તા ડોક્ટર ધનંજય ભાટિયા સાહેબ જે આપણને બહુ સારી રકમ આજે સમજાવ્યું ને એમના જ્ઞાનનો આપણે જે લાભ લેવાનો છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં એ ખરેખર બહુ મતલબ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટના ઉપર એમણે બધું શીખવાડવાની કોશિશ કરી છે. સ્માર્ટ એક્યુમેન કન્સલ્ટન્ટના સ્થાપક જે આપણી વચ્ચે આવીને આપને જે સમજાવ્યા એમનો હું વિશેષ આભાર વ્યક્ત કરું છું, આભાર માનું છું. તેમણે તેમના અમૂલ્ય સમયમાંથી સમય કાઢીને એડ 1 more zero વિષય પર અમને જે ઊંડાણપૂર્વક જ્ઞાન અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું તે ખરેખર પ્રેરણાદાયક છે. અને અમારા જે ઇન્વેસ્ટરો છે તે આર્થિક સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ચોક્કસપણે મદદરૂપ થશે. તેમજ ચેમ્બરના પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ નિખિલભાઈ મદ્રાસી સાહેબ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ, તેમજ મિતેશભાઈ મોદી સાહેબ, તેમજ અમારા ગ્રુપ ચેરમેન કમલેશભાઈ ગજેરા, તેમજ રાકેશભાઈ અમારા કમિટી મેમ્બર અને બીજા અન્ય કમિટી મેમ્બરોનો આપ સૌનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. અંતમાં અને સૌથી ઊંડાણપૂર્વક આ સભાખંડને તેમજ તેમની તમારી હાજરીથી શોભાવનાર તમામ ઉપસ્થિત સભ્યો અને મહાનુભાવોનો હું ખૂબ આભાર વ્યક્ત માનું છું. તમારી સક્રિય ભાગીદારી વિના આ કાર્યક્રમ સફળ ન થઈ શકશે. આપ સૌનો ફરીવાર આભાર વ્યક્ત કરું છું. થેન્ક યુ.